أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ چلیے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اور پھر کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ۔ کیسا گزرا آپ کا دن؟ الحمدللہ۔ کیسے گزر رہے رمضان؟ الحمد ہاں، یہ تو ہر کوئی کہہ رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب ہم لوگ تھوڑا سلو ہے اور وہ بہت فاسٹ ہے نا، یعنی جو ایک ٹارگٹ تھوڑا نہیں بہت سلو ہے ہم لوگ کہہ کچھ رہے ہیں اور مجھے بس بار بار یا بنی اسرائیل کے علماء یاد آ رہے تھے اور ڈر بھی لگ رہا تھا کہ واقعی اتنا کچھ انسان سوچتا ہے لیکن واقعی نہیں کر پا رہے۔ آپ اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ پھر آپ کو پیچھے آگے بڑھنے نہیں دیتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ الحمدللہ جتنی بھی اللہ کی توفیق ہو رہی ہے، جو بھی کر رہے ہیں اس پہ دل کی گہرائی سے انشاءاللہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بھی توفیق دی نا، کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو کہ الحمدللہ تو کتنے لوگ ہیں کہ جو اس وقت کو نہ ان کے پاس علم ہے نہ نالج ہے، تو وہ اس وقت کو کیسے گزار رہے ہیں نا، الحمدللہ۔ چلیے انشاءاللہ ایسا کرتے ہیں، اپنے صبر کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، جو کہ آج ہمارا جو قرآن کی روشنی میں ہم دیکھ رہے تھے کہ صبر کے حوالے سے آج اس کا لاسٹ پوائنٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ صبر اور ارکان ایمان۔ کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صبر کو ارکان اسلام اور ارکان ایمان میں سے ہر ایک کے ساتھ ذکر کیا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی صبر کا تعلق آپ کے ارکان اسلام کون سے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ ارکان ایمان کیا ہے؟ ایمان لانا جن جن چیزوں میں آمنت باللہ و ملائکتہ، صحیح، تو وہی کہا جا رہا ہے، ان دونوں کا اللہ تعالیٰ نے صبر کو اس کے ساتھ جوڑ دیا، سبحان اللہ۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا زیادہ ضروری ہے میری اور آپ کی زندگی میں۔ آج آپ دیکھیے، آج ہی میں نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ میں سارا راستہ یہی سوچتی رہی کہ میں جلدی پہنچوں گی، اور پتہ ہے کیا ہوا کہ آج میں لیٹی، یعنی 8:20 پہ مجھے پہنچنا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، میں 8:20 پہ آلموسٹ گھر سے نکلی ہوں اور جو میری اسپیڈ ہوگی ظاہر بات ہے مجھے واپس بھی آنا ہے، کرنا بھی ہے۔ اور وہی بات ہے کہ بچے ہیں نا، آپ کے ہاتھ میں نہیں، آپ بچوں کو جتنا بھی کریں۔ تو میں یہ سارے راستے میں بس تھوڑی دیر تو خاموشی، بچے کہہ رہے مما سوری سب، میں نے کہا ابھی میں کچھ بھی بولوں گی تو ایکسٹرا بول جاؤں گی، مجھے پتا ہے انسان ہے نا، کمزوری ہے۔ میں نے کہا بس ابھی خاموشی سے، بس بالکل خاموشی سے تلاوت لگاؤ اور چلاؤ، اور کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے نا، اگر زیادہ بولا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کہیں پڑھانا بھی ہے، آپ کو جانا بھی ہے، اس کی تیاری بھی کرنی ہے، تو آپ کے سر پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا۔ اب ایسے موقع پر آف کورس رش میں ڈرائیو کرنا بھی آپ کو کافی ڈر لگتا ہے، لیکن پھر وہی مجھے وہ جو میں نے آپ کو پہلی آیت بتائی تھی عباد الرحمن میں، اس میں نے آپ کو گاڑی کو بھی مینشن کیا تھا، یاد ہے؟ اور امام البانی رحمہ اللہ کا بتایا تھا نا کہ وہ اس مطلب گاڑی کا مسئلہ تو فاسٹ چلانے میں یعنی اس نے تو جو مطلب وہ گاڑی کا مزہ نہیں جانتا، شاید اسی لیے وہ جیسے کاجل سارا سے اپنی بات کر رہے تھے، تو میں وہی سوچ رہی تھی سبحان اللہ، آپ جتنا بھی فاسٹ چلائیں سگنل تو آتے ہیں، آپ کو رکنا ہے، آپ کو رکنا ہے، تو سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ بس یہ کہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ شکر ہے جو آیات پلے ہو گئی نا، تو وہ ایک طرح سے آپ کو واقعی اس وقت سکون دیتی ہے، اس وقت وہ جو چیز مجھے کام ڈاؤن کر رہی تھی کہ میں کچھ نہ بولوں، وہ اللہ کا کلام تھا، اللہ کی آیات تھیں۔ تو بس اسی وقت بس مجھے سوچا کہ میں نے سوچا کہ اب میں کیا کیا لے کے جاؤں، مجھے گھر بھی واپس آنا ہے، دیر ہو جائے گی، لیکن سبحان اللہ بس اسی میں خیر ہے۔ تو انشاءاللہ تو دیکھیں یہاں پہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اگزامپل دے رہے ہیں، دیکھیں نماز کے ساتھ صبر کا ذکر ہو، اور نماز کس
में से है, पिलर ऑफ इस्लाम में से है। सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो। फिर क्या? इल्लल्लज़ीना सबरू व अमिलुस्सॉलिहात, मगर वो लोग जिन्होंने सब्र किया और नेक अमाल किए। यानी क्या है? अल्लाह ताला मज़ीद फरमाते हैं क्या? इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर, बेशक हकीकत ये कि जो डरे और सब्र करे। सुभान अल्लाह। तो ये इससे क्या बात पता चली? अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ये बात पता चली कि ये बात पता चली कि जो सब्र है उसका ताल्लुक अरकान इस्लाम से भी है और अरकान ईमान से भी है। यानी ईमान भी सब्र के बगैर आपका कंप्लीट नहीं होता। जब तक कि आप ईमान जब लाते हैं तो उसके साथ अमल साले करने के लिए आपको सब्र की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना? उसके बगैर आप अमल साले कर नहीं सकते। अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से रोकना पड़ता है जो हम पहले कितनी कैटेगरी पढ़ सकते हैं। तो बारकल्ला जब बच्चे जाने लगे ना तो ऐसे मैं अमूमन कोशिश करती हूँ बच्चों को जैसे किस करके ना, अब वो मुझे किस कर रहे हैं, मैं हाथ पकड़ रही हूँ, मैं जाने दो मुझे देखो भैया। तो मैं यही सोच रही थी सुबहान अल्लाह कि बच्चे समझ रहे थे मम्मा काफ़ी अपसेट है, मम्मा कुछ बोल नहीं रही, तो मैं यही सोच रही थी चलो एटलीस्ट मुझे बाद में आने के बाद गिल्ट नहीं होगा कि मैंने उनको हाथ नहीं पकड़ा, वरना फिर बाद में आपको अफ़सोस होता है कि आपने वो एक्शन नहीं किया, उनका हाथ नहीं पकड़ा, उनके हाथ शेक हैंड नहीं किया। तो अल्लाह का एहसान है, शुक्र है अल्लाह ताला ने इस कुरान की बदौलत उस वक़्त इतनी मेरी बारकल्ला रहनुमाई कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह ये कि बस अल्लाह करे अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक दे दे। अब हम इंशाअल्लाह देखेंगे सब्र का जो बयान है अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में, तो इसमें सबसे पहले क्या है? पहले सदमे के वक़्त सब्र, अल्लाहु अकबर, और उसी वक़्त सब्र करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके बारे में क्या आता है? इसमें एक वाक़या आता है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत के पास से गुज़रे जो कब्र पर खड़ी रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डर जा और सब्र कर। वो कहने लगी, अल्लाह के बंदे, मैं बर्बाद हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डर जा और सब्र कर। कहने लगी, अल्लाह के बंदे, अगर तुझे वो मुसीबत पहुंची होती तो तू मुझे माज़ूर करार देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डरो और सब्र कर। कहने लगी, तूने बोल दिया है, अब मेरे पास से चली जाओ। उसको पता ही नहीं था अल्लाह के नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चले गए तो एक शख्स उसके पास आया और कहा, तुझे मालूम है अभी जो तेरे पास से गए वो कौन थे? उसने कहा, नहीं। उस शख्स ने कहा कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो एकदम परेशान हो गई और उसके हाथों के तोते, जैसे कहते हैं ना, हाथों से कोई चीज़ निकल जाना, और इसी हालत में जल्दी-जल्दी आपकी खिदमत में हाज़िर हुई और कहा, मैं सब्र करती हूँ, मैं सब्र करती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र पहले सदमे के वक़्त होता है, सब्र पहले सदमे के वक़्त होता है। अल्लाहु अकबर! कितनी अहम बात है ना। आप देखिए ना कि उसको पता नहीं था कि कौन कह रहा है, और आप ये भी देखिए बाज़ औक़ात हम जैसे अगर कोई ऐसी चीज़ें हमारे लोगों के सामने होती है और हमें पता है कि कोई ऐसा दीनदार बंदा बैठा है तो फिर भी हम कुछ कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन हमें पता नहीं है ना कि ये कौन बंदा है, उस वक़्त हमारी बेसब्री का आलम देखिए आप कि जिस वक़्त आपको चोट लगी उस वक़्त आप कैसे सब्र करते हैं। और देखिए उस औरत को नहीं पता था कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उसके बाद देखिए कि कैसे उसका अंदाज़ बदल गया, फ़ौरन जाती है अल्लाह के नबी के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर इस अंदाज़ से बताती है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ एक बात कही कि सब्र पहले सदमे के वक़्त होता है, सब्र पहले सदमे के वक़्त होता है। यहाँ पे बैठ के दुआ कीजिए, हर वक़्त हमारे साथ इम्तिहान है, स्पेशली रमज़ान तो है ही सब्र का महीना। मुसलसल एक के बाद एक इम्तिहान, आप प्लानिंग कुछ कर रहे हैं, हो कुछ रहा है, आप ऐसे मूव हो रहे हैं, वो कुछ और चीज़ें चल रही हैं। तब ऐसे मौके पर क्या करेंगे? सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने देंगे। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। तो इस हदीस से बहुत सारी बातें पता चलती हैं। एक तो ये कि मुसीबत के वक़्त सब्र करना वाजिब है। बेशक ये तक़वे में से है जिसका अल्लाह ताला ने मुझे और आपको हुक्म दिया। इससे पहली आयत में देखा था ना आपने? इसी तरह मुसीबत की शिद्दत और सख्त सदमे के वक़्त भी करना क्या है? अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा साक़ित नहीं होता। मुराद है आप कहीं ऐसी जगह गए, किसी का इंतकाल हो गया, औरतें चीख चिल्ला रही हैं, अब आप ऐसे मौके पर अमर बिल मारूफ क्या छोड़ देंगे? नहीं, आपको करना है, उनको बताना है जो शरीयत में हुक्म है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे मौके पर जो अमर बिल मारूफ नेकी का हुक्म देना या बुराई से रोकने का जो फरीज़ा है वो स्टॉप हो जाएगा, ऐसा नहीं।
उस वक़्त भी देखिए अल्लाह के नबी ने जब देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को इस कंडीशन में, तो आपने ये नहीं कि आप छोड़ दिया कि इसको रोने दो, बल्कि जो करने का काम था वो आपने किया। फिर ये कि आगे जो बताया जा रहा है कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का तकरार करना हत्ता कि अल्लाह की माज़रत साबित हो जाए। यानी आप मुसलसल करते रहें, उसको बताते रहें, लेकिन इसके बावजूद अगर वो नहीं मानता तो फिर आपकी पकड़ नहीं, फिर आपके लिए एक्सक्यूज़ है, माज़रत है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते ना। बाज़ औक़ात आप मना करने के बावजूद बच्चों को 10 दफ़ा चीज़ें मना कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद कर रहे हैं। बावजूद बच्चे गेम खेल रहे हैं, बावजूद बच्चे नेट पे बैठे हैं, अब आप क्या कर सकते हैं? ये माज़रत है। बस अब आपका जितना काम था मुसलसल तकरार के साथ नेकी नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, लेकिन इसके बावजूद कोई भी नहीं मानता। ऐसे मौके बस बस ये एक्सक्यूज़ हो जाएगा आपके लिए कि आपने अपना काम कर लिया। फिर ये कि मुसीबत के वक़्त ये जो दुआ पढ़ने की वजह है, आप सोचिए कि जब कोई इंसान मुसीबत के वक़्त ये दुआ पढ़ ले तो ये बेहतरीन नेमुल बदल होता है। और दुआ क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ सिखाई है? सबको याद है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। इसी से मिलते-जुलते अल्फाज के साथ भी आती है। तो अल्लाह ताला उस चीज़ से बेहतर ज़रूर अता फरमाते हैं जो अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ौत हुए। क्या हुआ जब वो फ़ौत हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उम्मे सलमा को ये दुआ सिखाई। फरमाती हैं कि मैंने कहा देखती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह ताला के फैसले पर राज़ी होने का अंजाम क्या होता है और इसका नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ताला ने उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा को दुनिया के ख़ावंद यानी दुनिया के जो हस्बैंड्स होते हैं, उनमें से बेहतरीन हस्बैंड अता किए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये दुआ बड़ी प्रोडक्टिव है, इन्ना बाज़ औक़ात भूल जाते हैं। तो ये इतनी खूबसूरत दुआ है कि वाक़ई आपको काम डाउन कर देती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा, ठीक खैरम मिनहा, इंशाअल्लाह। दूसरी चीज़ क्या है? बिनाई से महरूमी पर सब्र का अजर। सही बुखारी में आता है। अब देखिए कितने लोग होते हैं ना जिनकी बिनाई मतलब वक़्त के साथ चली जाती है ना? उनको नज़र नहीं आता है। आप अक्सर देखिएगा लोगों की बिनाई कमज़ोर से कमज़ोर होती है, लेकिन किसी की एक्सीडेंट में चली जाती है। आपको इमाम बुखारी का याद है? वो पैदाइशी थोड़ी अंधे थे, लेकिन उनकी बीनाई चली गई थी। लेकिन उनकी माँ की कसरत से दुआ करने की वज़ह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी बीनाई को वापस कर दिया। कहते हैं इतनी ज़बरदस्त रोशनी दी थी कि चाँद की रोशनी में उन्होंने सही बुखारी को लिखा है, सुभान अल्लाह। तो यही बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं जब मैं बंदे को उसकी 2 प्यारी चीज़ों से आज़माता हूँ और वो सब्र करता है तो मैं उसके बदले में उसे जन्नत अता करता हूँ। इन 2 प्यारी चीज़ों से मुराद आँखें हैं। ये 2 प्यारी-प्यारी सी आप सबकी आँखें सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं जब मैं बंदे से उसकी 2 महबूब चीज़ें ले लेता हूँ तो उसका बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। कितने लोग हैं जो बाय बर्थ जैसे कहा जाए कि ब्लाइंड होते हैं ना, अब बाज़ बाज़ लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अल्लाह ताला का एहसान है कि वो जो कुछ भी उनके साथ होता है, वो उसके साथ ईज़िली मूव हो जाते हैं। लेकिन कुछ के लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है और अपनी ज़िंदगी वो मिज़रेबल बना देते हैं क्योंकि उनके चाहने से नहीं होता किसी को ब्लाइंड है, कोई डेफ़ है, कोई पाँव से माज़ूर है। कितनी ज़्यादा जिसे कहा जाए इन चीज़ों के साथ बाज़ औक़ात लोग पैदा होते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि इंसान को जब ये 2 चीज़ें अल्लाह ताला ले लेते हैं, तो इसका बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं है। सही बुखारी की हदीस में आता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मैं दुनिया में किसी बंदे की 2 प्यारी चीज़ें ले लेता हूँ और वो उस पर अजर की उम्मीद रखता है, तो उसके लिए जन्नत पक्की है। सुभान अल्लाह! तो कभी भी अल्लाह ताला आँखों से आज़माए, तो ऐसे मौके पर क्या करना, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। सबकी आँखें वीक हो रही हैं, सभी चश्मा लगा रही हैं। सुभानअल्लाह! आहिस्ते-आहिस्ते इंसान को पता चलता है कि कितनी बड़ी नेमत है और आज हम देखेंगे इस नेमत के बारे में कि किस कदर बड़ी नेमत है, आज की आयत में पता चलेगा आपको कि मैं और आप कैसे इस आँखों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इंशाअल्लाह मूव ऑन हो जाते हैं, यहीं तक रखेंगे और मूव ऑन हो जाते हैं अपने इंशाअल्लाह लेसन की तरफ जो कि हमारी आज की आयत में इंशाअल्लाह देखते हैं क्या कुछ हमारे लिए इबादुर रहमान की सीरीज़ के अंदर जो हम देख रहे हैं। अच्छा, अब तक जो हमने पढ़ लिया, क्या कौन-कौन सी खूबियों को देखा? कोई वन बाय वन बताएगा? अब तो आपको याद हो गई होंगी ना, बोलते-बोलते कौन बताएगा? सिस्टर आफ़िया?
आजिज़ी के साथ चलते हैं, हर चीज़ में ईज़ मतलब मतलब चलने में, खाने में, पीने में, हर चीज़ में। लेकिन जब दीन की बारी आएगी तो फ़फ़िरू इलल्लाह। ठीक है, दूसरी बात जी क्या? बहस नहीं करते, जाहिलों से सलाम करके गुज़र जाते, उनसे बहस-ओ-मुबाहिसा नहीं करते। सिस्टर बीना नेक्स्ट इंशाअल्लाह। रातों को क़याम करते हैं, यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। सिस्टर सानिया। जी, रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। जी, सिस्टर हुमैरा। जी, सुभान अल्लाह। अभी रमज़ान का महीना कौन-कौन फ़िज़ूल ख़र्ची कर रहा है, कौन जो है सबने चुका ली, कौन-कौन सेल में जा रहा है बार-बार के और कौन-कौन जो है वो अल्लाह के रास्ते में भाग रहा है। कितनी कॉल्स आ रही है मस्जिदों में हर दिन कोई ना कोई माशाअल्लाह मस्जिद के आने हुँ? अच्छा, बड़ी आफ़िया ने बड़ी इंटेलिजेंट के साथ जवाब दिया है कि चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मकसद है कि अब देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह खर्च करने में इत्तिदाल कितना ना सारा ऐसा नहीं कहा अल्लाह ताला ने सब कुछ अल्लाह के रास्ते में लौटा दो, नहीं। अल्लाह ताला ने बैलेंस किया है कि अपने तुम्हारे घर वालों का भी हक है, तुम्हारी फैमिली का भी तुम पर हक है, जो भी आपके रेलेवेंट लोग हैं, तो जितना हो सके उतना दें और उसके बाद लास्ट क्या दें जी नादिया? शिर्क नहीं करते, अल्लाहू अकबर और लास्ट हमने एक और पढ़ा था जी सिस्टर नाहक कत्ल नहीं करते, उसमें 3 सूरतें देखी थी हमने, याद है ना? हाँ, जी, अब करेंगे इंशाअल्लाह ज़िना को आज। तो नाहक कत्ल में क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं? एक तो जान के कत्ल करना, है ना? सबको पता है लेकिन उसकी सज़ा के बारे में जो अहले इल्म की राय है वो कहते हैं कि इंशाअल्लाह अगर वो माफ़ी माँगेगा तो अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है। दूसरा अगर हम जानबूझ के नहीं वैसे ही गलती में हो गया तो फिर किसास है, बदला है, ठीक है ना? या तो किसास है या दियत यानी अमाउंट ले ले या फिर माफ़ कर दे। और फिर अगर दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों को जो मार देते हैं, पेट में मार देते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं और तीसरी सुसाइड। शाबाश, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम इंशाअल्लाह चलेंगे इबादुर रहमान की अगली क्वालिटी है और वो क्या है? अल्लाहू अकबर वो क्वालिटी नंबर 8 या 9 है वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर व ला यक़्तुलूना अन-नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ व ला यज़्नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा। जो अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद नहीं पुकारते और अल्लाह की हराम की भी किसी जान को नाहक हलाक नहीं करते और ना ज़िना के मुर्तकिब होते हैं। ये काम जो कोई करेगा वो अपने गुनाह का बदला पाएगा। युदअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़लुद फ़ीही मुहाना। क़यामत के रोज़ उसको दुगना अज़ाब दिया जाएगा और उसमें वो हमेशा ज़िल्लत के साथ पड़ा रहेगा। तो आज हम देखेंगे कि वो जो क्या नहीं करते, यानी वो ज़िना के मुर्तकिब नहीं होते। तो आज थोड़ा-सा ज़िना के हवाले से देखेंगे। तीसरा काम जो इबादुर रहमान नहीं करते वो ज़िना है और आजकल अगर हम देखें तो ज़िना किस कदर तेज़ी से फैलता जा रहा है। एडल्टरी कितनी तेज़ी के साथ फैल रही है। आज ना सिर्फ़ अल्हम्दुलिल्लाह ज़िना गैर मुस्लिम बल्कि मुसलमानों के अंदर भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मुसलमान इसके अंदर बहुत तेज़ी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो गैर महरम के साथ बातें करना हो, चाहे किसी भी तरह की बेहुदा गुफ्तगू करनी हो, इसी तरह बाज़ औक़ात शादीशुदा जोड़ा मैरिड कपल तक जिसे कहा जाए ज़िना के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं और इस तरह से गलत ताल्लुक के ज़रिए से पूरे-पूरे ख़ानदान, पूरी-पूरी फैमिली जिसे कहा जाए डिस्ट्रॉय हो रही है। आज अगर कोई शख़्स किसी से मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है ना? वो तो आपको पता है लव अफ़ेयर तो यहाँ चलते ही रहते हैं और स्पेशली आप आजकल तो बहुत ज़्यादा है। अब चाहता है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर हो, मुझे शादी इसी से करनी है। होता है ना बस यही शादी करनी है, माएँ लेके जाती हैं, 10 लड़कियाँ दिखाती हैं, फाइनल कह देता है कि नहीं इसमें 10 बुराई बताने के बाद कहे कि मुझे शादी इसी से करनी है। अब आप देखिए किसी कीमत पर हो, चाहे दोनों फैमिली राज़ी हो ना हो, चाहे पेरेंट्स राज़ी ना हो। कल मेरे पास किसी खातून का फ़ोन आया कि मेरे बहुत रोने लगी काफ़ी, बहुत नहीं कहूँगी एक्ज़ैजरेशन हो जाएगा, काफ़ी रोने लगी ना, जैसे ही उन्होंने बात शुरू की और रोना शुरू कर दिया।
تو मैंने कहा सब खैरियत है ना बताएँ? तो बस वो कह रही हैं कि मेरे मतलब बेचारी परेशान थी इस सेंस में कि बच्चों के रिश्तों के हवाले से ना हो सकता है जो रिश्ता उनको पसंद आता है, बच्चे को नहीं पसंद आ रहा है। जो बच्चे को पसंद आ रहा है, वो इनको नहीं पसंद आ रहा है। ये खुद दीन पर है, बच्चे भी नमाज़ रोज़ा करते हैं। देखिए हर एक की अपनी चॉइस है ना, हर एक का हो सकता है, हर इंसान मुख्तलिफ हो सकता है, किसी के दिल में किसी तरह की शदी बन जाती है। अब ये यहीं पे यही कहा जा रहा है यानी एक एक शख्स अगर किसी को पसंद कर लेता है किसी लड़की को तो चाहता है कि कुछ भी हो, बस मुझे यहीं शादी करनी है। इसी के सेम वाइस वर्सा लड़की अगर किसी लड़के को पसंद करती है, तो वो भी यही चाहती है। उसके बाद देखिए चाहे दोनों फैमिली राज़ी हो ना हो, लेकिन अगर शादी नहीं होती, तो वो किस तरह करते हैं? सम टाइम कोर्ट मैरेजेस कर लेते हैं, है ना? सम टाइम ऐसा होता है कि अगर पेरेंट्स नहीं मानते दोनों के, तो सम टाइम लोग कोर्ट्स मैरिज कर लेते हैं, सम टाइम ज़बरदस्ती करते हैं और कहते हैं कि चाहे मुझे जहन्नुम में जाना पड़े, मगर मुझे शादी इसी से करनी है। आप सोचिए, ये कैसी मोहब्बत है, जो इंसान को उसके साथी के साथ जहन्नुम में ले जाए। इसको मोहब्बत कहेंगे? वो कह रहा है मैं जन्नत में जहन्नुम में जाऊँ लेकिन मुझे करना ही इसी के साथ शादी है, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो ये ऐसी कौन-सी मोहब्बत है जो अपने साथी के साथ इंसान को जहन्नुम में ले जाए? अल्लाहू अकबर! आप देखिए ना गलत तरीके से अगर आप शादी करते हैं, लड़की अगर कोर्ट मैरिज में जाके शादी करती है, शादी तो नहीं है, वो तो ज़िना है। क्योंकि शादी हो नहीं सकती लड़की की जब तक वली के बगैर। वली के बगैर नहीं शादी हो सकती और विलायत कहाँ से जाती है? आपको पता है ना? विलायत बाप के बाद बाप नहीं है तो चचा, बेटा मत भाई, बेटा नहीं भाई, अब यानी फादर के साइड पे जाती है। अब अगर वो कोर्ट मैरिज करते हैं तो ये क्या है? ये तो शादी थोड़ी तो ज़िना है। आज कितने लोग हैं जो कोर्ट मैरेजेस करते हैं, कितने लोगों को पता ही नहीं है और जाके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। बाद में जिसे कहा जाए फिर पेरेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्या होता है वल्लाहु आलम। लेकिन यकीन कीजिए ये शादी नहीं है। वली के बगैर औरत की शादी नहीं हो सकती। वली या तो मतलब बाप की तरफ से अगर बाप की तरफ से नहीं, फिर माँ की तरफ जाती है और अगर कोई भी नहीं है माँ-बाप की तरफ से तो फिर हुकूमत-ए-वक़्त जो होती है फिर उसकी वलायत करती है। लेकिन ऐसे कोर्ट मैरेजेस कर लेना, आप सोचिए। तो जब वो कहता है कि चाहे मुझे जहन्नुम में जाना पड़े तो मैं जैसे कहा जाऊँगा लेकिन मुझे शादी इससे करनी है। अल्लाह ताला माफ़ करे ये मोहब्बत नहीं है, ये लस्ट है। अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं ना और अगर हम देखते हैं कि जहाँ हम शादी करना चाह रहे हैं, वहाँ हमारी शादी में बात नहीं बन रही, तो इसका मतलब क्या है कि इंसान ये सोचे कि ये अल्लाह का फैसला है, ये क़द्दर अल्लाह है। तो मुझे क्या करना है, जो बेहतरीन एंड होना चाहिए किसी भी कपल्स किसी भी एक बॉय एंड गर्ल्स की फ्रेंडशिप का अगर वो एक-दूसरे से शादी करना चाहते हैं और नहीं हो रही, दोनों फैमिली राज़ी नहीं हो रही, तो एंड कैसे होना चाहिए? क़द्दर अल्लाह, ये अल्लाह का फैसला है और अपने आप को रोक लें और इसी को कहा जाता है कि सही मायनों में मोहब्बत आप करते तभी आपने आप को रोक लिया ना कि अल्लाह ना करे गलत कदम लेंगे तो वो कल आखिरत में किस कदर खसारे का बाइस बन जाएगा। तो हमारी मोहब्बत का एंड ये हो कि हम अल्लाह के फैसले पर राज़ी हो जाएँ कि जो अल्लाह को पसंद है, अल्लाह ने नहीं चाहा तो लिहाज़ा ये चीज़ आगे नहीं बढ़ी। लेकिन आप देखें ऐसे लोग जो मोहब्बत की खातिर जहन्नुम को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला कहते हैं इसके बारे में सूरतुल अंबिया में वलइन मस्सतहुम नफ़हतुन मिन अज़ाबि रब्बिका लयक़ूलुन्ना या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन और अलबत्ता अगर उन्हें तेरे रब का अज़ाब का एक झोंका भी लग जाए तो ज़रूर कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती हम बेशक हम ज़ालिम थे। इंसान इतनी जज़्बात में आके कह देता है ना कि चाहे कुछ भी हो मुझे शादी इससे करनी लेकिन जहन्नुम का एक झोंका भी इंसान को टच हो जाए ना, तो इंसान कहेगा हाय मेरी कमबख्ती, हाय मेरी बर्बादी। बेशक हम ही ज़ालिम थे। इस आयत से क्या पता चलती है? इंसान जहन्नुम का एक झोंका भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहाँ ये कि वो मोहब्बत के बड़े-बड़े दावे करे। कुछ भी हो, मैं तो इसी से शादी करूँगा। इसीलिए अल्लाह ताला सूरतुल माआरिज में फरमाते हैं, युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीह व साहिबतिही व अख़ीही व फ़सीलतिही अल्लती तुअवीह व मन फिल अर्दि जमीअन सुम्मा युनजीह वो उन्हें दिखाए जाएँगे मुजरिम लोग, चाहेगा कि काश उस दिन के अज़ाब के बदले में अपने बेटों को दे दे, अपनी बीवी को दे दे, अपने भाई को दे दे और अपने उस कुँबे को जो उसे पनाह देता था और उन सबको जो ज़मीन में है फिर अपने आप को बचा ले। आप सोचिए, एक सोच थी मोहब्बत, जहन्नुम में जाने को तैयार है,
बीवी के साथ मसला नहीं है, शादी करनी है गलत तरीके से, अल्लाह ताला कह रहे वो तो झोंका भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। कहाँ ये कि इतने बड़े-बड़े मोहब्बत के दावे हैं। फिर अल्लाह ताला कह रहे कल क़यामत के दिन तो आप सुन लें कि कल क्या होने वाला है। ये जो मोहब्बतें जिनके नाम पर हम गुनाह करते हैं, ये तो कल इंसान इनको देने को तैयार होगा और कहेगा अल्लाह बस मुझे बचा ले। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या देखिए, याद है अज़ीज़े मिस्र ने कितने डोरे डाले, कैसे दरवाज़ा बंद कर लिया और चाहा कि किसी तरह मतलब इतने खूबसूरत थे यूसुफ अलैहिस्सलाम कि उनके साथ गलत काम करने का इरादा किया। लेकिन आप देखिए अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो बुरहान दिखा दी और कैसे जिसे कहा जाए अल्लाह की उस बुरहान की वज़ह से यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह की रहमत से बचा लिए गए। उस दौर में भी ऐसे ही होता था। देखिए कैसे एक औरत ने दरवाज़ा बंद करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैसे पकड़ने की कोशिश की और यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाहू अकबर कैसे अल्लाह ताला की रहमत से बच गए। सेम इसी तरह देखिए हदीस में आता है क्या 7 किस्म के लोगों को अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन अपने अर्श के साए के नीचे जगह देगा। जिनमें से एक वो है जिसको एक साहिब मनसब और खूबसूरत हसीन औरत दावत-ए-ज़िना की दावत दे और वो कहे मैं अल्लाह से डरता हूँ। अल्लाह आज हमारे बच्चों को ऐसा बना दे। दावतें हर जगह आएँगी। हर आपको क्या पता आपके बच्चे स्कूल गए तो अब आपको लगता है कि बस बिल्कुल हम थोड़ी देर के लिए बैक टू होम हो जाते हैं। हम जो इतना माशाल्लाह पढ़ने-पढ़ाने वाले हैं, यकीन करिए हम वो जो अगर हम 10 पे खड़े ना, हम 5 तक पहुँच जाते हैं समटाइम अगर हमारा रैंकिंग देखें। और ये बच्चे जो इस अंदाज़ से तो लेते ही नहीं हैं। आपको पता है ना माहौल किस कदर असरअंदाज़ होता है। तो कहने का मकसद है आप देखिए, ये कहना कि वो कहे मैं अल्लाह से डरता हूँ इसलिए इस पेड़ से गुरेज़ करता हूँ, ये हराम है और ममनू है। अल्लाह हमारे बच्चों को ऐसा बना दे ताकि हमारे बच्चों को हम समेत अर्श का कल साया नसीब हो जाए, जिस दिन उस साए के सिवा कुछ नहीं होगा। इसीलिए कुरान मजीद में आता है इन्नहु कान फ़ाहिशतन वस्साअ सबीला। बेशक वो एक बेहयाई है और बहुत ही बुरा रास्ता है। अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये बेहयाई भी है और बहुत ही बुरा रास्ता है। आज ज़िना के कितने नुकसानात हैं। अब देखिए थोड़े से ज़िना के नुकसानात पे बात करेंगे। सबसे पहले देखिए इंसान का नस्ब ख़त्म हो जाता है और गलत-मलत हो जाता है। जब इंसान ज़िना के अंदर इन्वॉल्व होता है। कितने बच्चे जो ज़िना की वज़ह से पैदा होते हैं उनका कोई नस्ब नहीं होता। कोई मैंने आपको बताया था ना एक जिसे कहा जाए बहुत तालीमुल हदीस में बताया था स्टोरी कि कैसे एक बाप ने चुपके शादी की और जिसे कहा जाए अपनी शादी को डिक्लेयर नहीं किया और बाद में देखिए किस कदर आज जब बाप मर गया और जिसे कहा जाए आप सोचिए बाप की जायदाद में उस बच्चे का हिस्सा है जो उसने छुप के शादी की। बाप बच्चा तो उसका है उसी उसी की है। लेकिन आज देखिए कितने कुछ नुकसानात होते हैं, इंसान का नस्ब गलत-मलत हो जाता है। किसी और का वारिस कोई और बन जाता है। बहुत सी बीमारियाँ फिर कसरत से जन्म लेती हैं। एड्स की बीमारी, क्या कुछ बीमारी हैं, जो कि सिर्फ़ ज़िना की वजह से, इस एडल्टरी की वजह से होती है। औरतों की जो अज़मत है, वो ख़ाक में मिल जाती है और औरत जो कि माँ का तक़द्दुस रखती है, बेटी की अज़मत बेटी जो उसकी एक अज़मत होती है, वो उससे महरूम हो जाती है। बल्कि एक औरत एक बाज़ारी माल बन जाती है, प्रोस्टिट्यूट बन जाती है, अल्लाहू अकबर! और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, आप कभी प्रोस्टिट्यूट को देखें ना, जो गंदे काम करते हैं, जैसे उस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं ना, नशे की चीज़ों में, उनके चेहरे बड़े अजीब से होते हैं, बड़े अजीब से हो जाते हैं, सूरत उनकी बिगड़ जाती है, सीरत बिगड़ जाती है और औलाद जो उसके नतीजे में पैदा होती है, वो सबसे बढ़कर मोहब्बत से महरूम हो जाती है। उसके अंदर एक इंतकाम की कैफ़ियत होती है कि मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है? यकीन कीजिए वो मोहब्बत से बहुत ज़्यादा महरूम होती है। ऐसे लोग फिर माशरे में जाके मज़ीद जिसे कहा जाए परेशान होते हैं और इस तरह से कई ख़ानदान ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "जो आदमी मुझे 2 बातों की गारंटी दे दे, मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ।" अल्लाह करे हम इसको कंट्रोल कर सकें। एक ज़बान की और दूसरी शर्मगाह की। ये 2 चीज़ों की अगर आप इंशाअल्लाह ज़मानत दे दें तो अल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी कह रहे हैं मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं इसको यानी ये इंशाअल्लाह ये दोनों चीज़ों की ज़मानत दे दूँ तो मैं इसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। आज देखिए दुनिया भर में जो भी शर है, जो भी फ़साद है, जो भी करप्शन है, उसका उसका नतीजा क्या है? यही 2 चीज़ें, या तो मुँह से आप कुछ कहते हैं या आपकी शर्मगाह के ज़रिए से क्या कुछ फ़साद, क्या कुछ करप्शन होता है।
تو عبادُر رحمان جن جو کہ VIP لوگ ہیں، ان کا جو ایک ٹائٹل ہے، ان کا جو اعزاز ہے، اس کو بحال رکھنے کے لیے بھی جب کسی بھی اللہ کی جو پسندیدہ ہے، برگزیدہ شخصیتیں ہیں، جب ان پر کبھی بھی بہتان لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا دفاع کیا، جیسے مریم علیہ السلام پہ کیسے مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا نا اپنے کام کے لیے، ان پر بھی زنا کا الزام لگایا تھا نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے ہی مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو کیسے عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول پڑے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، سبحان اللہ، کہتے ہیں میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے بھی جو تھے اللہ تعالیٰ کے جو عباد الرحمان کی کیٹیگری تھے کیسے ان کو پروٹیکٹ کیا، اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا ان پر جب زنا کی تہمت لگی، واقع اس تو سب کو یاد ہے، بخاری میں کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، سبحان اللہ، تو آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی برات میں آیات نازل کر دیں اور قیامت تک کے لیے یہ اعزاز ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہما کے لیے ثابت کر دیا۔ کیسے ان کو جسے کہا جائے اللہ نے پروٹیکٹ کیا، کیسے ان کو ثابت کر دیا کہ وہ بے گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا زنا کا کیا حکم ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور وہ قیامت تک حرام ہے۔ آج میجورٹی تو نہیں کہیں گے، موسٹ اچھے خاصے لوگ زنا کے اندر انوالو ہیں۔ اب آپ اچھے مسلمان گھروں کے لوگ زنا کے اندر انوالو ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے زنا سے پورا میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے نہیں کہوں گی کہ ہر چیز کا زنا کس قدر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اسی لیے قرآن مجید نے اس سے بھی زیادہ عظیم بات کہی ہے، اور وہ بات کیا کہی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کہ وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ زنا نہ کرو، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی جو زنا کے اسباب ہے، جو زنا کی بدکاری ہے، اس کا راستہ بھی تم اختیار نہ کرو۔ ایک ہوتا ہے کرنا اور ایک ہوتا ہے اس راستے کی طرف جانا، وہ بھی تم اختیار نہ کرو۔ آپ دیکھیں کہ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں تو اس سے پہلے عرب کے معاشرے میں زنا کو کوئی عیب سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، عام تھا زنا، چوری، قتل عام تھا، مطلب کوئی عیب ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن جیسے ہی اللہ کا حکم آیا، اسلام آیا، سبحان اللہ، ان لوگوں کے اندر ایسا انقلاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عباد الرحمان کا اعزاز بخشا، سبحان اللہ، کیسے جسے کہا جائے پہلے برین سازی کی گئی اور پھر شریعت سازی کی گئی۔ کتنا آسان ہو گیا کہ جب آپ کا آج جو ہمارے بچوں کا جو برین اسٹومنگ کی جا رہی ہے نا، جیسے آپ بچے اس قابل نہیں ہو رہے کہ دین کو سمجھے، کچھ پڑھتے بھی ہیں تو ان کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا، پتہ ہی نہیں چلتا، یہاں کا جو سلیبس ہے، جو تعلیم کا سلسلہ ہے، مجھے نہیں لگتا وہ بچوں کو کسی قابل بھی چھوڑتی ہے، وہ بس ایک اسکول کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ عرب معاشرے میں جہاں زنا عام تھا، قتل و غارت عام تھا، اس طرح کی برائی تھی، جیسے ہی حکم آیا تو فوراً اس جسے کہا جائے ان لوگوں کے اندر ایسا انقلاب آیا کہ وہ عباد الرحمان کے ٹائٹل کے اندر آ گئے۔ تو اب ہم دیکھیں گے یہ جو قبیح زنا کا فعل ہے، اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اس کے کچھ جسے کہا جائے سد ذرائع ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تھوڑا سا اس کے اسباب پہ بات کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ جب اسباب پتہ چل جائیں گے انشاءاللہ تو امید ہے کہ یہ اسباب آپ کو ہیلپ کریں گے اس قبیح کام سے بچنے کے لیے، اور یہ نالج آپ انشاءاللہ اپنے بچوں آگے نسلوں کو دے سکتی ہیں۔ سب سے پہلے جو زنا کا سبب ہوتا ہے وہ اسٹرینجر عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا، خلوت میں یعنی کسی بھی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے۔ ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج کو جا رہی ہے اور میرا نام تو فلاں جہاد میں جانے کو لکھا گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ تو جا اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج کر۔ سبحان اللہ، فوراً کہا بیوی کا نام بیوی اکیلے حج پہ جا رہی ہے اور میاں کا نام کس میں آ گیا ہے؟ جہاد کے اندر۔
تو بتاتے تو اللہ کے نبی نے، دیکھیے جہاد کتنا امپورٹنٹ ہے۔ بعض احادیث کے اندر آپ افضل اعمال کو دیکھیں گے تو جہاد کو سب سے زیادہ امپورٹنس حاصل ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج کرو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر، اور سے سنیے گا، اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ کسی غیر محرم عورت سے خلوت اختیار نہ کرے، الا یہ کہ اس کے ساتھ اس کا محرم رشتہ دار ہو۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کی علیحدگی میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی اکیلے کہیں بھی ہو، آپ آفس میں ہو، اسکول میں ہو، کہیں بھی ہو، یونیورسٹی میں ہو، کالجز میں ہو، کبھی بھی کسی مرد کے ساتھ تنہا نہیں ہونا، کیونکہ تیسرا کون ہوگا وہاں پہ؟ شیطان ہوگا۔ اسی طرح عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار کوئی آدمی کسی عورت سے علیحدگی اختیار نہ کرے جس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک عورت ہے، شادی شدہ ہے، کیا وہ عورت سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے، الا یہ کہ محرم بھی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور دو سے وہ بہت دور ہوتا ہے، یعنی اگر میاں بیوی دونوں ہوں گے تو شیطان آئے گا نہیں، جیسے کہا جائے قریب، لیکن اگر ایک اکیلے عورت ہوگی تو شیطان آسانی سے اس کو اپنے چنگل میں پھانس سکتا ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ ایک اجنبی آدمی کا ایک اجنبی عورت کے ساتھ سفر کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ چاہے وہ سفر تعلیم و تعلم کا ہو، یعنی پڑھنے سیکھنے سکھانے کا ہو، چاہے حج کا ہو۔ ابن عباس کی حدیث سے پتہ چل گئی کہ حج پہ وہ جا رہی ہیں بیوی، اور ادھر سے جیسے کہا جائے اس کے ہسبینڈ کا نام جہاد میں آ رہا ہے، آپ نے کہا تو اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ اور حج کر۔ تو چاہے حج کا سفر ہو، عمرے کا سفر ہو، یا جسے کہا جائے عام سفر ہو، تعلیم و تعلم کا سفر ہو، کسی بھی طرح کا سفر ہو، تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ غیر محرم کے ساتھ، جسے کہا جائے یعنی مراد ہے کہ محرم کے بغیر یہ سفر نہیں ہو سکتا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی۔ یہ کتاب الحج مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے، کوئی بھی عورت جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہے وہ محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلی؟ سفر 3 دن کا ہو، 1 ہفتے کا ہو، زیادہ کا ہو، 2 دن کا ہو، 1 دن کا ہو، 1 رات کا ہو، جس کو لوگ عرف عام میں سفر کہتے ہیں، کہ جس کو پتہ چلے کہ جیسے آپ یہاں سے جا رہے ہیں، جیسے کہا جائے البرٹا جا رہے ہیں، پتہ ہے کہ سفر، اب یہاں سے اگر آپ نائگرا جا رہے ہیں، پتہ ہے کہ یہ ویسا سفر نہیں ہے، مطلب اس میں آپ جائیں گے آ جائیں گے، لیکن اگر آپ کسی اور جیسے کہا جائے سٹی چلے جاتے ہیں، جیسے اگر آپ اوٹھوا چلے جاتے ہیں، تو یہ سفر ہے جسے کہا جائے نا، یعنی جو قریب قریب میں سے ساگا جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، جو قریب قریب کے ایریا ہیں، تو جس کو عرف عام میں، جس میں آپ پیکنگ کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، رات کا سفر ہے، تو کہا جا رہا ہے کوئی بھی بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ تو 3 دن کا ہو یا زیادہ کا ہو، 2 دن کا ہو، 1 رات کا، جس کو لوگ سفر کہتے ہیں، تو وہ سفر عورت بغیر محرم رشتہ دار کے یا شوہر کے بغیر نہیں کر سکتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا عورتیں دیور کے ساتھ بھی خلوت اختیار نہیں کر سکتی؟ یعنی آپ کو پتہ ہے بیک ٹو ہوم، ایون یہاں بھی ایک بہت سارے جیسے کہا جائے کمبائن فیملی سسٹم ہے، خاتون بتا رہی تھی کہ ہمارے تو دیور جیٹ سب لوگ ساتھ رہتے ہیں، تو کیا عورت دیور کے ساتھ بھی جیسے کہا جائے خلوت نہیں اختیار کر سکتی یا اس کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی؟ بالکل نہیں کر سکتی ہے۔ آپ سوچئے نا کہ کتنے لوگ ہیں جو دیور کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں، دیور کے ساتھ شاپنگ چل رہی ہے، تو دیور کے ساتھ جیسے کیونکہ میاں کا ہے وہ بیک ٹو مطلب وہ جسے کہا جائے بیرون ملک، کہیں جسے کہا جائے سعودیہ میں جاب کر رہے ہیں، ابھی پاکستان میں، اب دیور ہے، دیور کے ساتھ ہی ہر جگہ جایا جا رہا ہے۔ اب ایک خاتون کہنے لگی کہ وہ بتا رہی تھی کہ ان کے ہسبینڈ جو تھے ان کی جاب ایسی تھی کہ وہ جسے کہا جائے ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتے تھے، اور جب ان کی وائف پریگننٹ ہوئی تو دیور کے ساتھ ڈاکٹر کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اب آپ سوچیے، کیونکہ ہسبینڈ کی جاب ایسی کہ وہ ہر وقت آ نہیں سکتے، کس قدر بیہودگی ہے، کس قدر شرمندگی ہے، اور لوگ اس کو برا بھی نہیں، اس کو سمجھتے کہ یہ میرا بھائی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیور کو تو موت کا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو عورت دیور کے ساتھ بھی تنہا نہیں بات کر سکتی، الا یہ کہ اس کے بچے کوئی بڑا سامنے ہو، کیونکہ گھر میں اکثر ہوتا ہے دیور بھابھی کے رشتوں میں، اسپیشلی جو مووی میں کریٹ کیا جاتا ہے،
और इस तरह से सीन के करके दिखाया जाता है कि लोग समझते हैं कि ये रिश्ता तो सबसे ज़्यादा पाक-बाज़ है। यकीन करिए सबसे ज़्यादा खतरनाक ये रिश्ता है और इसमें कई घराने इन्वॉल्व हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि कैसे इस रिश्ते में जैसे कहा जब भाभी और देवर का किस तरह से आपस में ताल्लुक हो गया और किस तरह से आगे फिर रिश्ते टूटते हैं। तो याद रखिए, अमूमन हम इस माशरे के अंदर देखते हैं जिसको हम मायूब भी नहीं समझते और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि आप देखिए ना कि जैसे काजल से देवर ही सारी आपकी चीज़ों को पूरा कर रहा होता है। ऐसे मौके पर अगर शौहर अगर दूसरे मुल्क में रहता है और जब उसको पता चलता है तो दिल में बहुत सारे शक व शुबहात भी आते हैं ना बीवी के हवाले से इस तरह से ना। तो अब सवाल ये है कि इसका जवाब कि क्या शौहर के साथ यानी बीवी जो है अकेले तेवर के साथ खलवत इख्तियार कर सकती है? याद रखिए इसका जवाब ये है कि जिस तरह स्ट्रेंजर के साथ किसी भी नॉन महरम के साथ आपका खलवत इख्तियार करना हराम है, मना है, इसी तरह देवर, इसी तरह जेठ के साथ भी तन्हाई में जिसे कहा जाए बात करना ये मना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मौत करार दिया। क्यों? क्योंकि देखिए अजनबी जो होते हैं ना स्ट्रेंजर आदमी तो किसी दूसरे के घर में जाएँगे ना तो थोड़ा शर्माएँगे, है ना? पता है कि हाँ भई थोड़ा-सा उनके अंदर खौफ महसूस होगा, मगर देवर हो या जेठ वो तो उसमें तो किसी को शक ही नहीं हो सकता क्योंकि आपकी इतनी जिसे कहा जाए आना-जाना है, किसी को शक भी नहीं होगा कि इनके दरमियान क्या कुछ ताल्लुकात चल रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है ना? तो कहने का मकसद है जो कुछ भी कार्रवाई होगी किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और कोई बैरियर भी नहीं होगा, कोई रुकावट भी नहीं है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको इस तरह के वाक़यात नज़र आते हैं। तो पहला जो सबब है, जो मैंने आपको बताया, जिसको आपको अच्छी तरह ज़हन में रखना है कि खलवत नहीं इख्तियार करना। कहीं भी हो, आप कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, स्कूल में हो, हॉस्पिटल में हो, किसी भी नॉन महरम के साथ अकेले ना रहें, क्योंकि वहाँ पे तीसरा शैतान होता है और ऐसे मौके पर इंसान को पता ही नहीं चलता, औरतें इतनी कमज़ोर हैं, बाज़ औक़ात जिसे कहा जाए मर्दों की हवस का निशाना बन जाती हैं। अल्लाह ताला हम किसी की नज़रों को ये तो नहीं कह सकते ये ऐसा है, अल्लाह ही को पता है कि किसकी नज़रें कितनी पाक-बाज़ हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि मेरी उम्मत के लिए सबसे बड़ा फ़ितना किसका है? औरत का फ़ितना। इसके बाद देखिए कि दूसरा जो सबब है वो क्या है? नज़र का उठना। ये दूसरा सबब है ज़िना के रास्ते के लिए। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको एक अज़ीम नेमत दी है और वो कौन-सी नेमत है? आँखों की नेमत। इस नेमत का एहसास करना चाहते हैं ना, तो लम्हा भर के लिए आँखें बंद करें, सब आँखें बंद करें। हुँ? अब कुछ भी नज़र आ रहा है? किसी को नज़र आ रहा है? कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। सपोज़ कीजिए अल्लाह ना करे वाक़ईतन और अमलन आपने आँख बंद की और आँखें मतलब उसके बाद बिनाई किसी की वापस ही ना आई, तो आप सोचिए कैसा लगेगा? कुछ भी नहीं देख सकेगी ये आँखें, कुछ देख सकेंगी? आँखें बंद कीजिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ अमलन और वाक़ईतन ऐसा हो गया, तो उसको तो दुनिया में कुछ भी नहीं नज़र आएगा। तो इस नेमत की कदर करनी है कि नज़र को कहाँ उठाना है और कहाँ पे रखना है। इंसान को तब एहसास होता है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह जब आँखें खोलता है, उसको रोशनी नज़र आती है, उसको रंगीनी नज़र आती है, तो वो कुछ उसके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि ये नेमत कितनी बड़ी नेमत है। अगर आप आँखें बंद करें, आपको अल्लाह ताला की नेमतों में से कोई नेमत नज़र नहीं आएगी। हम दुनिया में चलते-फिरते हैं, हुँ? और इन्हीं आँखों की वज़ह से हम कितने जिसे कहा जाए कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं क्योंकि हमें नज़र आ रहा है, हम शऊर के साथ चल रहे हैं ना और अगर यही आँख अल्लाह ना करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी भी ज़िना करने वाले से छीन ले, तो कौन है जो अल्लाह की इज़्न जो कि उसको आँखें ला के देगा? कोई भी नहीं ला के दे सकता। दूसरी बात ये कि हमारे वाविला करने से, रोने-चाहने, चिल्लाने से, पुकारने से याद रखिए अगर हमारी आँखें चली गई हैं, तो कभी भी वापस नहीं आ सकती, जब तक अल्लाह का इज़्न नहीं हो। तो जब इतनी बड़ी नेमत उसने अता की है, तो फिर मैं और आप क्या करें? उस नेमत का शुक्र उतना ज़्यादा अदा करें। सूरह दहर के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? इन्ना शाकिरा व इस तरह की आयत आती है, यकीनन हमने उसको रास्ता दिखाया, ख़्वा वो शुक्र करने वाला बने या कुफ़्र करने वाला बने। इसमें आता है ना हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा
इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। अब वो चाहे तो जिसे कहा जाए शुक्रगुज़ार बने, यानी अल्लाह ताला ने तो उसको रास्ता दिखा दिया है और बता दिया कि किन चीज़ों को देखना है, किन को नहीं देखना। अब उसकी मर्ज़ी है इस आँखों को गुज़ारी के लिए इस्तेमाल करे या इसी आँखों के ज़रिए से ज़िना के रास्ते की तरफ चले। तो अल्लाह ताला ने रास्ता दिखाया और दिखाने के बाद इंसान की ये ज़िम्मेदारी ठहराई कि डिसीज़न उसको खुद करना है। अल्लाह ने नेमत दे दी है, बता दिया है, अब डिसीज़न आपने क्या करना है, आप जिसे कहा जाए खुद लेंगे और आप डिसीज़न किसके मुताबिक लेंगे? सोर्स ऑफ नॉलेज के मुताबिक लेंगे कि आपके पास क्या इल्म है। देखिए 2 तरह की टर्म इस्तेमाल की जाती है। एक होती है बसारत, बसारत का वर्ड सुना है? बहुत से लोग नाम भी रखते हैं और दूसरा होती है बसीरत। बसारत का मतलब क्या है? बज़ाहिर उस आँख से दुनिया को देखना, ये जो आपकी जो आँखें हैं ना, इससे आप दुनिया को देख रहे हैं और बसीरत का मतलब होता है अशिया की, चीज़ों की, थिंग्स की हकीकत तक पहुँचना। तो अल्लाह मुझे और आपको बसारत की निगाह दे। एक होता है ना ज़ाहिरी चीज़ें मुझे सब नज़र आ रहा है, आप सब नज़र आ रहे हैं, लेकिन बसीरत की निगाह ये है कि इंसान के अंदर उसकी डेप्थ हो। आपके चेहरे बताते हैं कि जब मैं गौर से देखती हूँ कि हाँ, तो पता चलता है कौन कितनी गौर से बातों को देख रहा है। ये आँखें ही तो देखती हैं। आँखों से तो पता चलता है आपके रिस्पॉन्सेज़ का कि आप किस अंदाज़ से चीज़ों को ले रहे हैं। तो याद रखिए एक जो बसारत की निगाह है, ये तो आम लोगों की निगाह है। लेकिन बसीरत की जो निगाह होती है, ये जिसे कहा जाए ऐसे लोगों की निगाह होती है जो वाक़ई गौर व फ़िक्र करते हैं। और जो लोग बसीरत से महरूम हैं, इनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, "वअरदना जहन्नम यौमइज़ लिल-काफ़िरीन अर्दा।" क्या है और उस दिन हम जहन्नुम को काफ़िरों के सामने लाएँगे, वो जिनकी आँखें मेरे ज़िक्र की तरफ से पर्दे में थीं और वो सुनने की इस्तिताअत नहीं रखते थे। यानी अगर मैंने और आपने इस ज़िक्र से मुँह मोड़ा तो कैसे जिसे कहा जाए यानी सुनना ही नहीं चाहा, अल्लाह की बात को मानना ही ना चाहा, तो कल वो फिर सुन ही नहीं सकेंगे, सुनने की इस्तिताअत ही नहीं रख सकेंगे। यानी दुनिया की ज़िंदगी में उन्होंने अल्लाह के इस कलाम से फ़ायदा ना उठाया, इस रहनुमाई से अपने लिए ज़िंदगी गुज़ारने का तरीक़े को ना सीखा। तो जब वो आख़िरत में पेश किए जाएँगे तो उस वक़्त कुछ सुनने की ताकत नहीं रखेंगे। उस वक़्त उनके पास कोई एबिलिटी नहीं होगी, कोई सलाहियत नहीं होगी जिससे वो इस्तेमाल कर सकें। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन अरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा वकज़ालिक नजज़ी मन असरफ़ वलम युमिन बिआयाति रब्बी वलअज़ाबुल आखिरति अशद्दु व अबक़ा। और जो मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ेगा, तो उसके लिए यकीनन दुनिया की ज़िंदगी तंग होगी और हम उसे क़यामत के दिन अंधा उठाएँगे। और वो कहेगा, "ऐ मेरे रब, तूने मुझे अंधा क्यों ढाया और यकीनन मैं आँखों वाला था।" अल्लाह ताला फरमाएगा, "इस तरह हमारी आयत तुम्हारे पास आई थी, फिर तूने क्या किया? उनको भुला दिया। इसी तरह आज तू भुलाया जा रहा है।" और इस तरह हम बदला देते हैं उस शख्स को जो हद से गुज़र जाए और अपनी रब की आयत पर ईमान ना लाए और आखिरत का अज़ाब ज़्यादा सख्त है और ज़्यादा बाक़ी रहने वाला है। तो इस आँखों से जो अल्लाह ने आपको दे दी है, अगर इस आँखों से आप अपने रब के कलाम को नहीं पढ़ते, उसकी बातों पर गौर व फ़िक्र नहीं करते, इस कायनात को नहीं पाते, मुरादे के उस पे तदब्बुर नहीं करते, तो कल क्या यानी जो बसीरत की निगाह है, गौर व फ़िक्र की निगाह है, इसको अल्लाह के लिए नहीं लगाते, तो कल देखिए क्या इंसान का हाल होगा। तो पहली तवज्जो तलब बात है कि जो लोग इस दुनिया में अपनी नज़र का सही इस्तेमाल नहीं करते, यानी इस कुरान से दूर रहेंगे तो कल क़यामत के दिन वो क्या उठाए जाएँगे? अंधे उठाए जाएँगे। इसी तरह अल्लाह ताला का फ़ैसला है और ये बात बात साबित हो चुकी है क्योंकि अल्लाह की बात नहीं बदली जाती। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह ने जो फ़ैसला कर लिया है, वो बदलने वाला नहीं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि उस वक़्त अगर इंसान ये कहे, "ऐ अल्लाह! तूने मुझे इस बिनाई से महरूम किया।" तो अल्लाह ताला कहेंगे, "महरूम तूने अपने आप को खुद किया है। कल तुम्हारे पास आँखों की नेमत थी, लेकिन तुमने उस आँखों की नेमत को दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया। तुम्हारा सिलेक्शन गलत था, तुम्हारा फ़ैसला तुमने खुद किया है, तुमने फ़ैसला दुरुस्त नहीं किया। तुम्हें दुनिया की जिसे कहा जाए मस्तियों में तुम गुम थे ना, तुम अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते थे, तुमने ये ना सोचा कि अल्लाह ताला ने
तुम्हें क्या कुछ नेमतें दी हैं, जो नेमतें दी हैं तो उसके बारे में पूछ भी तो होनी है ना, लेकिन आज मैं तुम्हारा क्या अंजाम करता हूँ। एक तो ये कि अंधे उठे हो और दूसरी तरफ ये कि कल तुमने मुझे बुलाया था, तो आज मैं तुम्हें भुला ही देता हूँ। आज इस आँखों का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो कल तो अंधे जिसे कहा जाए उठे, साथ में अल्लाह ताला कल बुला भी देंगे। इतनी बड़ी सज़ा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बुला देंगे। फिर उस रब को बुलाना उस दिन पे जब उसके याद रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। लेकिन दुनिया की ज़िंदगी में देखिए, अल्लाह का ये फरमान कितनी बार मेरे और आपके सामने आता है। अल्लाह ताला कितनी दफ़ा फरमाते हैं ना, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम। और तुम उन लोगों की तरह ना बन जाओ जो अल्लाह ताला को भूल गए, तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपना आप भुला दिया। अल्लाह ताला कहते हैं उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। देखिए जब कभी किसी चीज़ का फैसला करना होता है ना, तो अंजाम के एतबार से किया जाता है। आज भी एक फैसला है जो हमें करना है कि हमें दुनिया में अपनी नज़र का इस्तेमाल किस तरह करना है। मैं और आप अपनी नज़र को देखें कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके लिए बुनियादी बात ये है कि हमें अंजाम के एतबार से फैसला करना होगा। एक इंसान जो अंजाम से बेपरवाह हो, जिसको कोई फ़िक्र नहीं कल का दिन जो आएगा उसमें क्या कुछ होगा, कैसे हालात होंगे, क्या कुछ मेरे बारे में फ़ैसला होगा, तो यकीनी-सी बात है कि वो अपनी आँखों का सही इस्तेमाल नहीं करेगा। लिहाज़ा मुझे आपको पता है कि जो भी नेमत अल्लाह की तरफ से मिली है, उसके बारे में हिसाब होगा और हमें उनके जैसे कहा जाए जो भी अल्लाह की नेमत है उसके बारे में जवाब देना होगा। लिहाज़ा उस दिन के आने से पहले अगर मैंने और आपने दुरुस्त फ़ैसला ना किया, तो याद रखिए दुनिया में अल्लाह ताला ने जो अंजाम बता दिया है, तो वो कल होकर रहेगा। फ़ैसला हमारे पर है, हमारी सोच पर है। अक्सर हम ये सोचते हैं ना कि अल्लाह गफ़ूर रहीम है। तो बात ये है कि फैसला जो है वो अमल की बुनियाद पर होगा। अल्लाह ताला ये बात कहते हैं वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। यकीनन ज़माने की कसम इंसान घाटे में मगर जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए। तो वो कल जिसे कहा जाए वो कैसे कामयाब होंगे। तो इस एतबार से ईमान के साथ जो अमल साले की ज़रूरत है, तो याद रखिए उसके बगैर निजात नहीं है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। दोज़ख वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं हो सकते, जन्नत वाले ही कामयाब हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि नज़र कहाँ उठे तो कामयाबी मिल सकती है, नज़र कहाँ झुके तो कामयाबी मिल सकती है। इसका फैसला हमें किस बुनियाद पर करना होगा? इसके लिए हमें बुनियादी ज़रिया जो कि इल्म का सोर्स है, कुरान मजीद को देखना होगा। साहिब कुरान की ज़िंदगी को देखना होगा कि कहाँ पर उन्होंने अपनी नज़र को उठाया है और कहाँ अपनी नज़र को झुकाया है। जब तक आप इसको नहीं देखेंगे, आप अपनी नज़र का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए कुरान मजीद में आ रहा है कि किसी भी गैर महरम औरत की तरफ नज़र उठाना ममनू है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। मुसलमान मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करें, ये उनके लिए पाकीज़गी है। लोग जो कुछ करते हैं, अल्लाह ताला उससे क्या है? अल्लाह ताला उससे बाख़बर है। सेम इसी तरह यही मैसेज औरतों के लिए वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ुद्दुन मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फुरूजहन। अल्लाहु अकबर यानी मोमिन औरतों से भी कहा जा रहा है कि अपनी निगाहों को नीचे कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करें। तो यहाँ पे बेसिकली नज़र के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने इस आयत के ज़रिए से मुझे और आपको रहनुमाई दी है। तो यहाँ पे गद्दे बसर का हुक्म है। गद्दे बसर का मतलब होता है निगाह को पस्त करना। नज़र को नीचे करना, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हर वक़्त नीचे ही निगाह रखें, बल्कि इसका मफ़हूम ये है कि देखने के लिए निगाहों को आज़ाद ना छोड़ना कि जब दिल चाहे, जितना दिल चाहे देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें जब तक उसको घर में ना छोड़ दें।
یہ منع ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جا رہا بس آپ نگاہ بس کریں گے، نہیں، نگاہ نیچے کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت انسان نیچے ہی نگاہ رکھے، بلکہ اس کا مفہوم ہے دیکھنے کے لیے نگاہوں کو آزاد نہ چھوڑ دیا جائے، یا کسی شخص کے لیے بھی جائز اور حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی یا اپنی محرم خواتین کے علاوہ کسی بھی عورت کو نگاہ بھر کر دیکھے۔ ایسی بھابھیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بھابھی آپ تو کتنی پیاری لگ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ بیک ٹو ہوم میں جا کے دیکھیں جو دیور اور بھابھیوں کا مذاق چلتا ہے، کتنا کچھ چلتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ کسی بھی مرد کے لیے جائز نہیں کہ اپنی بیوی یا جو اس کی محرم جو رشتہ دار ہیں ان کے علاوہ کسی کو بھی نظر بھر کے دیکھے۔ ہم تو خالہ ہیں، سب مطلب خالہ تو چلو محرم ہے، لیکن باقی جو کزنس ہیں ان کو اتنا دل بھر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کہتے کہاں یہ کہ انسان یہ سوچے۔ تو اب آپ غور سے دیکھیے گا، میں اور آپ اپنے لیے رہنمائی لیں گے انشاءاللہ۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، قانون یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ یہ لا بتایا جا رہا ہے، ایک مرتبہ اگر اچانک نگاہ کسی پر پڑ گئی تو حکم کیا ہے، فوراً آپ نے اپنی نگاہوں کو واپس لینا ہے، اور ایسی نگاہ پر جسے کہا جائے پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر نگاہ گئی اور ٹک گئی تو پھر پکڑ ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، اے علی رضی اللہ عنہ، اچانک نگاہ کے بعد جان بوجھ کر دوبارہ نہ دیکھنا، اول تو معاف ہے لیکن دوسری بار معاف نہیں۔ اللہ اکبر۔ بیک ٹو ہوم میں دیکھا، آپ نے دیکھا جب لڑکیاں اسکول سے نکلتی ہیں، کالجز سے نکلتی ہیں، یونیورسٹی سے نکلتی ہیں، یونیورسٹی کے لڑکے تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں، تو راستے میں راہگیر ہیں وہ جب تک بچی اسٹاپ پہ پورا بس پہ نہیں جائے گی وہ دیکھتے ہی رہیں گے۔ بچیاں وین پہ آتی ہیں اور وین والا بھی اللہ اکبر، مطلب آپ سوچیں نا پیرنٹس کیسے بچوں کو وین پہ بھیجتے ہیں، اور وہ جو سارے شیشے سے وہ پیچھے پتہ نہیں کتنی دفعہ لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کتنی زیادہ اپنی خواہشات پوری کر رہا ہوتا ہے۔ آپ سوچیے، امیجنیشن میں لائیے کہ کس طرح سے جسے کہا جب بتایا جا رہا ہے کہ نگاہ ایک دفعہ پڑ گئی، میں نے کسی کو دیکھا، ہم راستے سے گزر رہے، ایک نظر پڑ گئی، ٹھیک ہے معاف ہے، لیکن اگر آپ ٹک ٹکی باندھ کے پورا اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور آپ کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے تو دوسری بار جو نگاہ پڑتی ہے تو یہ معاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے تمام اعضاء تمام آرگن زنا کرتے ہیں، آنکھ سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ اور اس پتہ نہیں اس آنکھ کے زنے میں تو میرے خیال سے سارے لوگ ہی انوالو ہیں۔ آپ دیکھیے ایک دفعہ نظر پڑتی ہے، لڑکے تو اسپیشلی، لڑکے تو جسے کہا جائے دیکھتے ہیں، ایک کو تھوڑی دیکھتے ہیں، جو ان کو پسند ہوتی ہے، جس کے ساتھ وہ فلرٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ کے علاوہ 10 لوگوں کو دیکھے ہوتے ہیں اس نگاہ سے۔ استغفر اللہ۔ تو آپ دیکھیے کہ جو حدیث کا مفہوم آتا ہے، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، اور یہ آنکھ کا زنا جو ہے یہ بھی جسے کہا جائے زنا کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انسان کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نگاہیں پھیر لو یا نیچے کر لو۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر آپ کی کسی چیز پر نگاہ پڑ جاتی ہے تو کیا کریں؟ اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیں یا نگاہوں کو پھیر لیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نگاہیں ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے میرے ڈر سے اس کو چھوڑ دیا میں اس کو ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یعنی نگاہ۔ ابھی انشاءاللہ دیکھیں گے جو تیسرا سبب ہے نا، کیسے سٹارٹ ہوتی ہے زنا کی نا، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ نگاہیں جو ہے ابلیس کے زہریلے جو تیر ہیں اس میں سے ایک تیر ہے، جس نے میرے ڈر سے اس کو چھوڑ دیا، یعنی نگاہوں کو نیچے رکھا، نہیں جسے کہا تھا انوالو ہوا، تو اس کو میں ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ آنکھ سے جب انسان دیکھتا ہے نا تو یہیں سے یاد رکھیے ساری بربادی کے راستے کھلتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نگاہوں کو جھکانے کا مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے ایک روایت میں آتا ہے، فضل بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر منا سے آ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھے تھے۔ اس دوران کیا ہوا، قبیلہ
قسیم کی ایک عورت جسے کہا جائے بہت ہی خوبصورت سی تھی نا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور مسئلہ پوچھنے لگی۔ اب کیا ہوا، جو فضل پیچھے بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس عورت کو دیکھنے لگے۔ اب کیا ہوا، اس کا حسن ان کو بڑا بھلا معلوم ہوا، اچھا لگا، اٹریکٹ ہونے لگے۔ کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں، اس لیے تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی ایسا ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر ان کو دیکھا تو فضل اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پیچھے لے جا کر فضل کی تھوڑی پکڑی اور اس کو یوں ٹرن کر دیا۔ سبحان اللہ، آج کسی کی آپ کر کے دیکھیں، پکڑی اور ان کا چہرہ دوسری طرف کر دیا۔ اس سے کیا بات پتہ چلی، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے بتایا کہ نظر کو کہاں رکھنا ہے۔ یعنی اگر نظر پڑ گئی، ایک نظر پڑی تھی تو جھکا لینا چاہیے تھا، آپ نے باقاعدہ ان کی تھوڑی پکڑی اور ٹرن کر دیا پھر کہ نظر رکھنی کہاں ہے، کدھر رکھنی ہے، نہ کہ آپ اگر آپ کو کوئی چیز اچھا لگ رہا ہے، کسی کا حسن بہت خوبصورت لگ رہا ہے تو آپ نے اپنی نگاہوں کو کہاں رکھنا ہے۔ اسی طرح دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت اہم حدیث ہے، آدم علیہ السلام کے بیٹے پر اس کی زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے جسے وہ لا محالہ پہنچے گا۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا بری بات کو سننا، زبان کا زنا کلام کرنا، ہاتھ کا زنا پکڑنا، پاؤں کا زنا چلنا، دل کا زنا آرزو اور تمنا کرنا ہے، اور پھر شرمگاہ یعنی جو پرائیویٹ پارٹ ہے اس کی تصدیق یا تکذیب کر دیتی ہے، ہر چیز زنا کرتی ہے۔ ایک ایک کر کے اسٹیپس ہے نا، اسی لیے تو میں آپ کو اسباب جسے کہا جائے زنا بتا رہی ہوں تاکہ پتہ چلے کہ آنکھوں سے کس طرح سے زنا یعنی نظر کے اٹھنے کی وجہ سے کیوں قرآن پاک میں غض بصر کا حکم آیا کہ آنکھوں کو نیچے کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ پریکٹیکلی کر کے بتا رہے کہ نگاہوں کو رکھنا کہاں ہے، کسی کا حسن اچھا لگ رہا ہے، کوئی بہت اچھا لگ رہا ہے تو کیسے اپنی نگاہوں کو جھکانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں زنا کرتی ہیں، اور شرمگاہ یعنی یا تو ایک چیز جو ساری اسٹیپ ہیں، آنکھ کان جسے کہا جائے پاؤں ہاتھ جب زنا میں انوالو ہوتے ہیں تو شرمگاہ اس کو کنفرم کر دیتی ہے یا پھر اس کو ڈینائی کر دیتی ہے، رک جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے آج کتنے ہی افراد ہیں جن کی پہلی ہی نظر ختم نہیں ہوتی، پہلی نظر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی رہتے ہیں، ان کی کہتے تھے جب دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ دیکھیے ایک واقعہ آتا ہے جو کہ کعبے کے اندر ہوا نا، ہر میں کعبہ میں کہتا ایک شخص تھا جو کہ طواف کر رہا تھا۔ اب طواف کے دوران اس کی نگاہ بہت ہی حسین خوبصورت لڑکی پر لگی، ایک دم سے وہ چلا اٹھا، ایک دم سے بول اٹھا، اے اللہ، میں اس خانے کعبے کے طواف کرتے ہوئے نہیں جانتا کہ میری نظر اٹھے گی اور وہ نظر میرے لیے کس قدر تباہی کا سامان پیدا کرے گی۔ یعنی وہ طواف کر رہا تھا، طواف کے دوران اس کی نظر اٹھ گئی اور ایک حسین چہرے پر پڑ گئی، اور اس حسین چہرے پر پڑنے کی وجہ سے اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ کس قدر تباہی کے اندر چلا جائے گا۔ نظر اٹھی اور اس حسین لڑکی کو دیکھا جس پر میری نظریں کب جس کہتے ہیں نا ٹکی کی ٹکی رہ گئی، اور اس کے بعد بیت اللہ میں اس برائی کا شکار ہوا کہ اپنے دل کو بچا نہ پایا۔ اس نظر کی وجہ سے آج میرا دل بری طرح زخمی ہے۔ کس کام سے گیا تھا؟ طواف کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، اور ہوا کیا؟ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں انسان اللہ کا قرب پانے کے بجائے کچھ اور ہی قرب پا گیا۔ انسان کی اسی لیے تو غض بصر کا حکم ہے کہ آپ طواف میں بھی آپ دیکھیں اس قدر بھیڑ ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کیونکہ اللہ نے رکھا ہے، اسی لیے تو یہ حکم آیا کہ نگاہیں نہیں ایسی چیز جو تعقب کرتی ہیں۔ مرنے والا بھی کیوں اپنی روح کو دیکھتا رہتا ہے، یعنی مرنے کے بعد سب سے آنکھیں لاسٹ میں جو آرگن جسے کہا جا ہوتا ہے وہ آنکھیں روح کو نکلتے وقت دیکھ رہی ہوتی ہیں، تعقب کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، تو کتنا اہم ہے، ہم اس کو ویلیو نہیں کرتے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ شخص جس نے اس طرح کعبے کے اندر ایک حسین عورت کو دیکھا، طواف کرتے کرتے وہ اس کے سحر میں گم ہو گیا، ٹکی ٹکی کے ٹکی اس کی آنکھیں رہ گئی، اور اس طرح سے وہ برائی کا شکار ہو گیا، اور اس کی وجہ سے کہتا ہے آج میرا دل بری طرح زخمی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دل پر جتنے زخم لگتے ہیں، عموماً زخموں کی جو بنیادی جڑ ہوتی ہے وہ آنکھ ہوتی ہے۔
आँख से स्टार्ट होता है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि कान अपना किरदार अदा नहीं करता। याद रखिए जो जो कान है वो भी अपना किरदार अदा करता है। जैसे रॉन्ग किस्म की कॉल्स आती हैं, लोग बेहूदगी बात करने लगते हैं, लव किस्म की बात करते हैं, है ना? तो याद रखिए जो गलत कॉल्स के ज़रिए से जो सुना जाता है, फिर इसके ज़रिए से इंसान के अंदर एक उल्फ़त तो महसूस होती है, लेकिन शायद ये बुराई दबी रहती है उस बुराई के मुकाबले में जो सामने नज़र आती है। आपने नहीं देखा उस बंदे को ना, यानी आपकी निगाह ने उसको परसीव नहीं किया। अब आपने कॉल्स की कोई आपके साथ रॉन्ग कॉल में फ्लर्ट कर रहा है और आप हल्का-सा जैसे उसने इतनी अच्छी बात कही, कोई भी इंसान हल्का-सा जिसे कहा जाए उल्फत यानी थोड़ा-सा खिंचाव पैदा कर रहा है। लेकिन याद रखिए दोबारा कॉल्स नहीं आएगी तो वो चीज़ दब जाएगी, नहीं आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर आपकी नज़र किसी चीज़ को परसीव कर गई है, आपके दिल के अंदर आँखों के ज़रिए से कोई चला गया है, बड़ा मुश्किल होता है उससे छुटकारा पाना। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो यानी कान भी ज़िना करते हैं, लेकिन वो बुराई शायद दबी रह जाती है। लेकिन नज़र का गलत इस्तेमाल करता है, तो हम देखते हैं वो हमारे दिल को बेचैन कर देती है। जबकि कुछ लोगों का ये ख़्याल है कि अक्सर लोग कहते हैं ना असल मामला तो आँखों का नहीं है, आँखों का क्या पर्दा जब किसी से कहो ना कि आप पर्दा करें, तो कहते हैं पर्दा तो दिल का है। यानी तो आँखें जो देख रही हैं वो पाक यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गद्दे बसर का बता रहे हैं, चीज़ों का बता रहे हैं फ़ज़ल बिन अब्बास की जिसे कहा जाए थोड़ी करके बता रहे हैं आँखें कहाँ रखनी है, तो लोग कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल तो जिसे कहा जाए जो हया है, पर्दा है वो दिल का है, आँखें तो दिल भर के देखें, जिसको चाहें देखें, चाहे महरम हो, गैर महरम हो सबको देखें। जबकि अल्लाह के नबी बता रहे हैं कहाँ निगाह उठनी है, कहाँ नीचे रखनी है, कहाँ जिसे कहा जाए अपनी निगाह को एग्ज़ैक्ट रखना है ना, तो इस चीज़ की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहनुमाई करें। तो अक्सर लोग कहते हैं असल मामला तो दिल का है, आँख का नहीं, तो दिल साफ होना चाहिए। अल्लाहू अकबर! आपको पता है आपका दिल साफ है, सामने वाला जो आपको टिक-टिकी बाँध के देख रहा है, आपको पता है आपका दिल साफ है, वो कितनी कुछ बैड फीलिंग मतलब किस कदर जिसे कहा जाए इस तरह के जज़्बात लिए हुए, आपको तो नहीं पता। इस तरह से ऐसे लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, वो अपने आप को पारसा साबित करते हैं और दूसरों पर नज़र गाड़ने का जवाज़ क्रिएट करते हैं, कि देखा जा सकता है, कोई मसला नहीं है, हमारा तो दिल पाक है। अरे! हमारी भतीजी तो है, हमारी भांजी तो है, अरे! आपसे नहीं शादी हो सकती, आप उसको इतना सर पे हाथ ना फेरें, इतना गले ना लगाएँ, इतना क्लोज़ ना करें। आपके साथ जब नहीं हो सकती शादी, यानी आप देखिए ना जो आपके बहनोई हैं, जब तक बहन ज़िंदा है तो शादी नहीं हो सकती, लेकिन आज तो बहनोई को हक़ किया जाता है। होता है बहुत सारे माशरे में आप देखते हैं, ये जो क्लोज़ किया जाता है स सट मतलब क्लोज़ ऐसे करके शोल्डर को टच किया जाता है, सर पे हाथ जिसे कहा जाए अक्सर हमारे मोहल्ले के लोग भी आते हैं तो बच्चे समझ के सर पे भी हाथ फेरे होते हैं, वो बिल्कुल अच्छी तरह याद है। मुझे याद है मैं एक दफ़ा हज से वापस आई तो हमारे हज के ग्रुप में ना एक कपल था, काफ़ी ओल्ड कपल था। तो फिर उसके बाद वो मुझसे बाद में मिलने आई ना तो अंकल थे काफ़ी ओल्ड होंगे मेरे ख़्याल से 70 के करीब होंगे। तो जाने लगे ना तो वही पाकिस्तानी स्टाइल बस सर पे मैं जल्दी से नीचे यूँ हो गई। तो मैंने फिर उनको कहा बुरा नहीं मानिए कि अलाउ नहीं है किसी के सर पे भी हाथ फेरना। मैंने उनको क्योंकि एकदम मुझे नहीं पता सडनली एक्शन होगा ना क्योंकि वो जैसे बूढ़े हैं ना आप किसी को मतलब वो एक आपके रूममेट थे, आप उनकी वाइफ़ और आपने उनको बहुत हेल्प की हो तो वो जैसे आते हैं मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तो ऐसे मौके पर उनको उनको तो नहीं एहसास हुआ क्योंकि वो बैक टू होम से है, उन्होंने यही कल्चर देखा है कि बै सर पे हाथ जैसे वो बहू समझ रहे हैं, बेटी समझ रहे हैं, यही समझते हैं आस-पास के लोगों को। लेकिन फिर मैंने उनको वहीं बताया, अलाउ नहीं है किसी भी से आप गैर महरम का सर छू के उसको इस तरह से मतलब जिस तरह से भी दुआएँ दें, आप यूँ ही दुआएँ दे दें। तो कहने का मकसद ये है कि जब निकाह के बारे में बता दें, जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारा दिल साफ है, तो असल बात ये नहीं है। असल बात अल्लाह के नबी का जो हुक्म है वो बस ये जवाज़ क्रिएट करते हैं कि हम अपनी नज़र को दूसरों पर जिसे कहा जाए गाड़ सकते हैं, दूसरों को देख सकते हैं और इस तरह अपने आप को मुजरिम की कैटेगरी में नहीं लाना चाह रहे। तो इस्लाम देखिए कितना खूबसूरत दीन है कि वो उन तमाम ज़राए पर पाबंदी लगाता है, जिसकी वजह से नज़र उठने के इम्कानात पैदा होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम रास्तों को रोका है। देखिए क्या फरमाते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं खबरदार रास्तों में बैठने से गुरेज करो। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ये मजलिस तो बहुत ज़रूरी है, हम वही रोज़मर्रा की गुफ्तगू किया करते हैं। आपने फरमाया, जब तुम इन मजलिसों में बैठना ही चाहते हो, तो रास्ते का हक अदा किया करो।
अल्लाहु अकबर में हम लोग जैसे निकलते हैं ना मस्जिदों से, तो रास्ते का हक सुनिएगा क्या है? हक अदा करो। रास्ते का हक क्या है? सहाबा रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ते का हक क्या है? फरमाया, नज़र नीचे रखना, राहगीरों को ना सताना, सलाम का जवाब देना, भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। जब आप रास्ते में खड़े हो सकते हैं या बात किसी से कर सकते हैं, आप कॉलेजेस में देखिए, स्कूलों में देखिए, मोहल्ले में देखिए, मस्जिद से निकलते हुए देखिए, कहाँ हम खड़े होते हैं, और जब खड़े होते हैं तो हम क्या ये सारे काम करते हैं? अपनी निगाह को झुका के रखते हैं। हम जिसे कहते हैं किसी को अपने रास्ते से तकलीफ तो नहीं दे रहे जो रास्ते में गुजरने वाला है। फिर सलाम का जवाब, यानी हम सलाम करते हैं, जवाब देते हैं, भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं कि नहीं? अगर रास्ते में इतना ही बैठना या खड़ा होना ज़रूरी है, तो फिर ये काम करने पड़ेंगे। तो निगाह को नीची रखने के हवाले से इमाम इब्न अल क़य्यूम रहिमहुल्लाह ने बहुत सारे फ़ायदे बताए। नंबर 1, दिल हसरत से बच जाता है। जब निगाहें नीची होती है ना, तो आपका दिल हसरत से बच जाता है। इसी तरह देखिए, दिल नाउम्मीदी की तकलीफ से बच जाता है। दिल में जो एक उम्मीदें होती है ना और फिर किसी वजह से पूरी नहीं होती, तो एक तरह से इंसान नाउम्मीद होता है, तो उस तकलीफ से बच जाता है। इसीलिए अगर वो ऐसी चीज़ को देखता है जो उसके बस में नहीं, जिसको वो हासिल ही नहीं कर सकता, तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर है कि उसकी नज़र उस तकलीफ को मतलब उसकी नज़र से वो तकलीफ पहुँचाती है। मुराद है किसी चीज़ को आपने देखा, अब उसको हासिल करना चाहते हैं, अब और अगर वो नहीं हासिल होती है, तो फिर वो नज़र आपको तकलीफ़ पहुँचाती है। फिर देखिए कि शैतान उसे आमादा करता है, क्या कहता है? तीसरी बात कि दुनिया के हुस्न से फ़ायदा उठाना तुम्हारे ज़ौक़-ए-जमाल की अलामत है, तुम तो बहुत बाज़ौक़ हो। यानी होता है ना, शैतान कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी निगाहें नीची रखने लगे हो। तो शैतान प्रोवोक करता है कि देखो, दुनिया का हुस्न है, अल्लाह की जिस इतनी क्रिएशन है, तो तुम तो बहुत ही जिसे कहा जाए शौक और ज़ौक़ वाले हो, तो इस ज़ौक़ से जिसे कहा जाए फ़ायदा उठाना, ये तो तुम्हारी जिसे कहा जाए आदत है, तो तुम इससे फ़ायदा उठा सकते हो। और इस तरह फ़ायदा उठाते-उठाते इसका दिल किसी और ही दुनिया में पहुँच जाता है। आप देखते रहेंगे दुनिया की चीज़ों को, देखते-देखते आप एक वक़्त आएगा कि आपके अंदर से जो हया है, आपके अंदर से जो एक अल्लाह की तरफ से दी हुई बसीरत है, वो ख़त्म हो जाएगी और निगाहें हर वक़्त किसी को ढूँढेंगी। इसलिए इमाम इब्न क़य्युम रहिमहुल्लाह कहते हैं कि जो अपनी नज़र को नीचे करके रखता है, उसके दिल में नूर पैदा होता है, उसे इबादत का ज़ायक़ा महसूस होने लगता है, उसे इबादत में मज़ा मिलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान की नज़र पहली मर्तबा किसी मुसलमान औरत की खूबसूरती पर पड़े और वो अपनी नीची निगाहें कर ले, तो अल्लाह ताला उसके लिए उसकी इबादत में मिठास पैदा कर देते हैं। ये भी अबू दाऊद की रिवायत है। अब देखिए कितनी बड़ी बशारत है कि आज इबादत में मिठास क्यों नहीं है हमारी। कितनी दफ़ा आप कहते हैं कि इबादत है, लेकिन उसके अंदर एक लज़्ज़त नहीं है, एक खुशबू नहीं है, एक मिठास नहीं है। वजह ये कि निगाहें इधर-उधर हैं। तो कैसे जिसे कहा जाए इबादत के अंदर लज़्ज़त आए? तो आज से कोशिश करनी है कि जब आप वॉक करके जा रहे हैं, आप रास्ते में जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, अपनी निगाहों को हद्द-ए-नज़र झुका के रखना है। हाँ, इल्ला माशाअल्लाह कि ज़ाहिर बात है रास्ता है, गाड़ी आ रही देखेंगे, किसी पर निगाह पड़ी फ़ौरन फेर लेना है, कोई दिल में एक ख़याल भी आया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। इसी तरह शेख अबुल हसन अल-वारिक़ कहते हैं रहमहुल्लाह फरमाते हैं वरा अल हसन वरा कहते रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जो कोई अपनी निगाह को हराम रिश्ते से बचाता है, अल्लाह ताला उसकी ज़बान पर हिकमत व दानाई की बातें जारी कर देते हैं, जिससे सुनने वाले हिदायत पाते हैं। कितना बड़ा लेसन है मेरे और आपके लिए। क्यों नहीं आज बच्चे मेरी और आपकी बात सुनते हैं? मैंने कहा अगर मैं और आप इंशाअल्लाह हराम रिश्तों से बचाएँगे, तो आपकी ज़बान पर ऐसी हिकमत आ जाएगी, ऐसी दानाई आ जाएगी, जिससे इंशाअल्लाह सुनने वाले हिदायत पाएँगे। इसी तरह हसन मुजाहिद रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि हराम रिश्तों से जो नज़रों को नीचे रखता है, वो अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करता है।
कौन है जो अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहता है? तो वो अपनी अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी क्या करे? हराम रिश्तों से अपनी निगाहों को नीचा कर ले। देखिए इफ़्फ़त और पाक-दामनी बुनियादी तौर पर नज़र की हिफ़ाज़त से ही मुमकिन है और जिस चीज़ पर नज़र पड़ जाए, एक नज़र इंसान कैसे वो इंसान को इन्वॉल्व कर देती है। जिस पर नज़र पड़ी, इंसान फिर क्या करता है, उसकी खोज में पड़ जाता है। अब सपोज़ कीजिए, अभी यूनिवर्सिटी के ज़माने को ले लीजिए, आप स्कूल थे, कॉलेजेस थे, किसी एक पर नज़र पड़ गई और उसकी उसकी खूबसूरती भी बड़ी खूबसूरत थी। अब इंसान क्या होगा, उसकी खोज में लग जाएगा। अगर मर्द है, तो औरत की खोज में यानी उसको जिसे कहा जाए ढूँढेगा और औरत अगर हया के तकाज़ों की तकमील नहीं करती, उसके अंदर मॉडेस्टी नहीं है, तो वो मर्द की खोज में लग जाएगी। और फिर वो पता चलाते हैं कि कौन-सी फैमिली है, किससे बिलॉन्ग करते हैं। फिर इससे पता करते-करते फ़ोन में यानी हाथ में फ़ोन आ जाता है, यानी टेलीफ़ोन नंबर आ जाता है। फिर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू होता है और फिर आगे बात बढ़ती है और कितने ही ख़ानदान हैं, जिन्हें अपनी बेटियों के हाथों अपनी इज़्ज़त को दाग लगवाना पड़ता है। और आज तो इतना कॉमन है और तुम बता रही थी कि लड़की बिल्कुल रिलीजियस खानदान की सब कुछ जिसे कहा जाए जब उन कहती हैं कि मैं कहीं काम कर जैसे वो घर-घर में जाके ना जैसे हेल्प करती हैं उनके हस्बैंड या नहीं है या क्या तो वो हेल्प करती हैं जैसे क्लीनिंग का हेल्प करती है ना, तो कहती हैं कि मुझे एक घर में शादी के लिए बुलाया और कहा कि मतलब काफ़ी रिलीजियस घर है मतलब जैसे अच्छे पर्दे वाले लोग। अब जब शादी के दिन लड़की ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी पहले से। उन्होंने इतनी जल्दी सब कुछ किया, जल्दी सब किसी को पता ना चले और 6 महीने के बाद ही बच्चा डिलीवर हो गया। यानी इवन 6 महीने से भी कहती हैं पहले कि मुझे उसी वक़्त लगा कि मतलब ये इस तरह से क्यों लग रही है लड़की ना। तो कहने का मकसद है माँ-बाप अपनी इज़्ज़तों को बेचारे क्या करें कि ऐसे ही होता है सिर्फ़ एक नज़र पड़ी और नज़र पड़ने के बाद आप देखिए दिल बेचैन हुआ और इंसान कैसे उसकी खोज में लगा और कहाँ तक पहुँचता है गुफ्तगू और फिर बात आगे बढ़ते-बढ़ते वो ज़िना की शक्ल इख्तियार कर लेती है। लेकिन अगर यही नज़र झुकी रहे तो कितने लोग हैं जो आफ़ियत में रहें और अपने आप को बेहयाई के कामों से बचाएँ। शरीयत ने कुछ सूरतों में आपको एक्सेप्शन दी है कि जिसमें औरतों को देखा जा सकता है। तो वो कुछ अहम जगह हैं जहाँ पे एक मर्द औरत को देख सकता है। जैसे किसी भी औरत का किसी मर्द के साथ निकाह है, तो औरत भी मर्द को देख सकती है और मर्द भी औरत को देख सकता है। निकाह के मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया था एक सहाबी से कि तुम किसी से शादी करना चाहते थे, आपने कहा उन औरतों को देख लो, उनकी आँखों में कुछ प्रॉब्लम है ना। तो कहने का मकसद है कि मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल बन-ठन के आ जाएँ पूरा मेकअप पूरा बाली आपका हेड कवर होगा, आपका हेड यानी जैसे आपका चेहरा और आपके हाथ नज़र आते हैं ना इतना। तो कहने इसी तरह कब देखा जा सकता है? जराइम की जैसे तफ्तीश करते हैं ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके सिलसिले में किसी भी मुश्तबा औरत को देखना याद है आपको हातिब बिन अबी बलता का किस्सा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे जैसे कहा जाए वो जो औरत खत लेके गई थी और कैसे फिर अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उसकी चेकिंग की थी, सारा देखा, उसको दिखाया कि वो कहाँ है कहाँ है? तो उसने कहाँ छुपा के रखा था। तो कहने का मकसद है जब इन्वेस्टिगेशन हो तो उस वक़्त भी जिसे कहा जाए औरत को देखा जा सकता है। इसी तरह जो जज है, काज़ी है, किसी औरत को गवाह के तौर पर देखना चाहता है तो उस वक़्त उसको देख सकता है औरत को, उसको देखनी है उसकी गवाही को। और इसी तरह इलाज के लिए डॉक्टर या कोई भी मुआलिज है जिसे कहा जाए यानी जो भी आप जिससे इलाज करवा रहे हैं, तो वो अपनी मरीज़ को देख सकता है। इसके अलावा बीवी अपने शौहर को, शौहर अपनी बीवी को देख सकते हैं, है ना? इसी तरह अल्लाह की कायनात सुभान अल्लाह इतनी कुछ है, तो औरत अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरी कायनात को अल्लाह की क्रिएशन को देख सकती है, मर्द भी पूरी क्रिएशन को देख सकता है। याद रखिए औरतों के लिए भी निकाह को नीचे रखने का वही अहकामात हैं, वही मसाइल हैं, वही हिदायत हैं जो मर्दों के लिए यानी वो भी जानबूझकर किसी मर्द को ना देखें, बल्कि अपनी निगाहों को नीचे रखें। लेकिन अगर कभी एक-दूसरे पे निगाह पड़ जाए, तो फ़ौरन निगाह को जिसे कहा जाए झुका लें क्योंकि मुसलमान औरत किस चीज़ का जिसे कहा जाए सिंबल होती है पाक-दामनी का, किस चीज़ का सिंबल होती है इफ़्फ़त का पैकर होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी और आपकी निगाहों को बचा के रखे। अल्लाह ताला मुझे और आपको बचा के रखे। अब एक और जिसे कहा जाए वाक़या है जो मैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में सोच रही हूँ कि अर्ज़ करूँ क्योंकि अभी अगर मैंने आपको बताया तो मेबी अल्हम्दुलिल्लाह कि हो सकता है कि टाइम गुज़र जाए। मैं 1 सेकंड टाइम देख लेती हूँ। हुँ, जी।
मैं देख रही थी काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं अभी अगर शुरू करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि नहीं, नहीं हो पाएगा ना। तो ऐसा करते हैं कि इंशाअल्लाह, क्योंकि आपकी 11:30 तक क्लास है ना, तो उसके और भी सद्दे-बाब हैं और वो काफ़ी आगे तक जा रहा है। जी, इंशाअल्लाह, तो ऐसा करते हैं कि इंशाअल्लाह जो बाकी किस्सा है, वो इंशाअल्लाह आपके सामने बाद में रखते हैं। बल्कि एक किस्सा मैं आपके सामने और रख देती हूँ कि किस तरह इंसान का ईमान चला जाता है। जी, इंशाअल्लाह। तो मैं आपके सामने एक और किस्सा रख देती हूँ, नाज़िया इसको स्लाइड पे पीछे रखिएगा जी, इंशाअल्लाह। हाफ़िज़ इब्न क़य्यूम रहिमहुल्लाह ने एक नौजवान का तज़किरा किया, जो मिस्र में रहता था। बस इसके बाद इंशाअल्लाह बंद करेंगे, क्योंकि 2-3 और सद्दे-बाब हैं, जिससे ज़िना के दरवाज़े खुलते हैं। एक मस्जिद का मुअज़्ज़िन था, बहुत ही खूबसूरत अरबी लड़का था। अरबी तो उनकी तो ब्यूटी भी बिल्कुल काफ़ी डिफरेंट होती है ना, आपने देखा है, अल्लाह ने उनको कलर, हाइट और उनके जैसे बहुत ब्राइट और रेडिश होते हैं। अल्लाह ताला ने उसे बहुत यंग एज में ये नेमत दी थी कि वो अल्लाह के नाम को बुलंद कर सके। मस्जिद के जिस मीनार पर चढ़कर वो अज़ान दिया करता था, एक रोज़ अज़ान देते हुए उसकी नज़र नीचे एक लड़की पर पड़ गई। निगाह पड़ गई, देख लिया, बस पड़ गई। वो लड़की क्या थी? क्रिश्चियन थी। वो मीनार से उतरा और सीधा उसके घर चला गया। अब देखिए, यंग एज में अल्लाह ने उसको कितना बड़ा टाइटल दिया था, एक मुअज़्ज़िन, नमाज़ को लीड करना, इमाम। लेकिन क्या हुआ एक दिन कि उसकी निगाह जिसे कहा जाए पड़ गई और वो लड़की क्रिश्चियन थी। वो मीनार से उतरा और सीधा उसके घर चला गया। लड़की ने पूछा, "ये बताओ, तुम यहाँ क्यों और कैसे आए हो?" उसने कहा, "तुम्हारी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई है।" लम्हे में एक नज़र पड़ने से क्या हुआ? मोहब्बत हो गई। ये लस्ट होता है। उसने कहा, "मैं तुम्हारी आरज़ू कभी पूरी नहीं कर सकती, इसलिए कि तुम मुसलमान हो और मैं क्रिश्चियन हूँ।" उसने कहा, "मैं तुम्हारी बात पर गौर करने के लिए तैयार हूँ।" अब देखिए किस कदर एक निगाह के पड़ने से वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात पर गौर करने को तैयार हूँ। लड़की ने कहा, "गौर कर लो, देख लो, मैं भी ईसाई हूँ, मेरा वालिद भी क्रिश्चियन है, मेरे खानदान के तमाम अफ़राद क्रिश्चियन हैं। मेरा वालिद सिर्फ़ उसी सूरत में निकाह पर आमादा हो सकते हैं, जब तुम अपना दीन छोड़ दोगे।" लड़के ने ईसाईयत इख्तियार कर ली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना क्या था? मौसम था, इमामत कराता था, अज़ान दे रहा था, बस एक निगाह पड़ गई, एक खूबसूरती। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना औरत है। अल्लाहू अकबर! अब क्या हुआ? एक रात वो सोने के लिए अपने घर की छत पर गया और उसका पाँव फिसला, नीचे आ गिरा और मर गया। अभी उसका निकाह भी नहीं हुआ था, यूँ इस निकाह पर उसकी कुदरत भी नहीं हुई और उसका ईमान भी चला गया। निकाह भी नहीं कर सका, छत पे गया, सो रहा यानी पाँव स्लिप हो गया, ऊपर छत से नीचे गिरा, ना निकाह पर कुदरत हुई और खात्मा भी किस पर हो गया? दीन से बाहर, बेदीन हो गया, क्रिश्चियन के साथ, ईमान चला गया। अल्लाहू अकबर! तो क्यों कहा जा रहा है गद्दे बसर क्यों कहा जा रहा है? निकाह को नीचे रखो, बड़े-बड़े लोगों का ये हाल होता है। आप देखिए, काबे में एक शख्स की नज़र पड़ी तो क्या हाल है? और हम कहते हैं तो ये तो दिल है, दिल नहीं है, ये निगाह ही है जो दिल को बेचैन करती है। ये निगाह ही है जो दिल को जिसे कहा जाए बेचैन करके इंसान उसकी खोज में चला जाता है। ये इंसान कैसे चला? ये सच्चा वाक़या अरब का। कैसे वो अपने दीन से हाथ धो बैठा सिर्फ़ एक नज़र की वज़ह से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपकी इन सब जो 2 असबाब हमने देखे ना, कभी भी तन्हाई औरत और मर्द कभी ना रहे। आप देखिए, अक्सर लोग अकेले सफ़र करते हैं। साथ ही आपकी जो सीट होती है ना, कोई नॉन महरम होता है, कभी आपको नींद के झोंके आ रहे होते हैं और कभी-कभी होता है ना, आप ऐसे तकिया लगाए होते हैं, कभी ऐसे भी हो रहे होते हैं। किस कदर आपको नहीं पता चलता और आपके बरा ब ब ब जो बराबर में उसका दिल किस तरह का है। अस्तगफिरुल्लाह। और औरतें इतनी आसानी से सफ़र कर लेती हैं। अल्लाह ना करे, आपको नहीं पता हम कितना भी अल्लाह के इज़्न से अपने आप को मुसलमान कहें, लेकिन खुलिक़ल इंसानु दईफ़ा, इंसान कमज़ोर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वाज़िह बता दिया, जो औरत अल्लाह और यौम आखिर पर यकीन रखती है, वो एक दिन, एक रात का सफ़र बगैर महरम के ना करे, इसी फितने की वजह से।
नहीं पता बराबर वाले के दिल में क्या फितने हैं, क्या चीज़ है, और वो औरत कहाँ तक, किस हद तक वो फितना जिसे कहा जाए आगे जाएगा। तो कहने का मकसद है, अल्लाह ना करे इस तरह के बहुत से सीन होते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन फितनों से मुझे और आपको बता दिया कि कैसे खबरदार होना है। अगर आपको सफ़र करना है, या तो महरम रिश्ते हो या शौहर आपका महरम है, उसके साथ सफ़र करें, चाहे आपका तालीम और ताल्लुम का सिलसिला, सीखने-सिखाने का सिलसिला है, या हज का सफ़र है, या रूटीन वैसा ही सफ़र है आपको बैक टू होम जाने का। और सेम इसी तरह अपनी निगाह को नीचे रखना। एक दफ़ा निगाह पड़ गई, इंशाअल्लाह अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है। लेकिन अगर टिकटिकी बाँध के देखते रहे तो अंजाम देखिए क्या होगा। इंसान बाज़ औक़ात दीन पर होते हुए ईमान के बगैर मर जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको इस निगाह की हिफ़ाज़त करने वाला बना दे। मज़ीद सद्दे ज़राई हैं जिसको बात करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह अपना जायज़ा भी लेंगे और उन दुआओं को सीखेंगे। अभी हम यहीं पर रखते हैं इंशाअल्लाह। तो क्या सीखा इंशाअल्लाह 5 मिनट है आज की इंशाअल्लाह 2 सद्दे बाब, और साथ-साथ आपने देखा कि क्यों इन चीज़ों का हुक्म दिया है और क्यों इबादुर रहमान के अंदर इस क्वालिटी को मेंशन किया। हमें तो ऑब्वियसली पता है कि वो ज़िना नहीं करते, क्योंकि वो चोज़न पीपल है, वीआईपी पीपल है, स्पेशल पीपल है। लेकिन उस दौर में भी ज़िना आम था, और आज इतना तेज़ी से ज़िना आम है, इतना तेज़ी से जिसे कहा जाए आम है, कि लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। लोग इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं कि बस इसी तरह हो रहा है, और अब अगर कोई नहीं करता तो उनको बड़ा अजीब-सा भी लगता है कि मतलब ये तो आम है, और ये ज़िना सिर्फ़ एडल्टरी नहीं है, ख़ास जैसे ताल्लुक नहीं है, जैसे एक-एक ऑर्गन आस्ते-आस्ते ज़िना करते हैं, और फाइनली शर्म का प्राइवेट पार्ट उसकी तस्दीक या तकज़ीब कर देते हैं। तो क्या सीखा आज की आयत से? जी, आफ़िया इंशाअल्लाह। हुँ, 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 हुँ। सुभान सुभ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल, जन्नत। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, महबूब है, ऑफ़ कोर्स, हाँ, अल्लाह ताला की हर नेमत है। हाँ, जी, सुभान अल्लाह। जी, बिल्कुल, जन्नत की खुशबू। हुँ, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बशारत है जन्नत के लिए अगर वो सब्र करते हैं। हुँ, हुँ। कितने लोग हैं, आप देखिए, अभी इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे, बहुत सारे सहाबा एंड में काफ़ी लोग आँखों से चली गई थी बिनाई, बहुत सारे सहाबा के साथ भी, इनके साथ भी ये हुआ है कि निगाह, तभी तो ये हदीस आप देखें, दोनों फ़र्क है ना, नहीं ये तो बिनाई चली गई ना, एक होता है कम नज़र, जैसे अब आजकल तो बच्चे-बच्चे ग्लासेस लगाए हुए हैं, अल्लाह ताला आसान कर दे। जी, और क्या सीखा इंशाल्लाह आज की, जी नादिया? हाँ, हुँ, हुँ। ऑफ कोर्स काउंटर का, यानी अगर आप फ़ोन पे बैठे हैं, आपको अक्सर बेकार किस्म की, जैसे होता है ना, कभी फ़ुज़ूल किसी चीज़ की, ऐसे आजकल पाकिस्तान में कभी एक दफ़ा न्यूज़ चली हुई थी किसी के हवाले से कि अल्लाहू अकबर, ऐसी पास हो रही थी, लोग लोग इस तरह एक-दूसरे को पास करते, उसमें कितनी चीज़ें खराब होती हैं। आप जब उसको देखते हैं, उसी के अंदर आता है, ये आप नहीं देख सकते। इवन इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को स्विमिंग में लेके जाते हैं। और वो जो निकाहें पड़ती हैं बेलिबास, यानी वो लिबास क्या होता है स्विमिंग का आपका, कभी देखा है? हम बच्चों को इतने शौक से ले जाते हैं, और आपको क्या पता है कैमरे नहीं लगे हुए हैं, और जो मर्द चीज़ दिखा दो, आपको क्या लगता है कि बहुत से तो, या इनके यहाँ तो कोई कांसेप्ट नहीं है जिसे कहा जाए, और आप सोचिए कि जो तैराकी के मुकाबले टीवी पे दिखाए जाते हैं, जो निगाहें देख रही होती हैं, हम कहते हैं हम तो बड़े पाक-पाज़ हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मैं सोचती हूँ क्या कुछ हो रहा है? हम कभी इसको देखते ही नहीं, और हम इतना प्रमोट करते हैं अपने बच्चों को स्विमिंग के लिए, और हम ये नहीं देख रहे कि क्या कुछ निगाहें, जो इंस्ट्रक्टर बैठा हुआ है, अक्सर होता है मेल होता है। यकीन कीजिए छोटे-छोटे बच्चों को कभी मेरा इत्तेफ़ाक हुआ है, तो मैंने देखा है, अल्लाह ताला, मैं कभी-कभी ये कहते हैं,
अभी कभी मैंने हमारी तरफ एक जैसे कहा जाए जो है हमारा जो कम्युनिटी सेंटर है, तो अक्सर लोग कहते हैं नहीं वो कर्टन डाल देते हैं। मैंने खुद ऊपर जाके देखा आप कर्टन क्यों साइड से इतने इतने से खुले होते हैं, सब नजर आ रहा होता है, सब नजर आ रहा होता है। इतनी बड़ी बड़ी औरतों को एक निगाह पड़ी है मेरी सिर्फ कि बिल्कुल जैसे कहा जाए उनका जो लिबास होता है, कॉस्ट्यूम होता है पहनने का, मैं सोचती हूँ कि इनको यानी मतलब नफिल को करने के लिए आप हराम काम करेंगे कि नबी वो बस हदीस सुन लिए कि तैराकी जो है जिसे कहा जाए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब सुन्नत है। हर बंदा चल पड़ा है चाहे वो नंगा हो रहा है कोई मसला नहीं है। आप सुन्नत है वो फर्ज तो देखिए आप अलाउ नहीं है, आप इतना नहीं खोल सकती हैं। बेडरूम में भी आपको कितनी रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप किस हद तक अपने हस्बैंड के सामने, वो भी सिर्फ हस्बैंड के सामने। और कहाँ ये कि आप जिसे कहा जाए वो जो कैमरा है जो आपको पता है कैमरा तो हर जगह लगा हुआ है, कोई जगह कैमरे से वो है ही नहीं। मस्जिदों में भी जाएं तो जगह जगह पे कैमरे लगे होते हैं स्पेशली कि पता हो खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट हो तो कैमरा उसको कैचअप जिसे कहा जाए थोड़ा बहुत कर लेता। तो अच्छा सवाल है कि इस तरह की चीजें बहुत होती हैं और हम अपने बच्चों को बहुत इनकरेज करते हैं, स्पेशली लड़कियों की तो इज्जत बहुत है हमें। लड़के तो फिर भी चलिए ठीक है सुन्नत है चलो, लड़कियां तो बहुत डेलिकेट होती है। मैं नहीं सोच सकती कि मैंने तो कभी नहीं अपने बच्चों को स्विमिंग करवाई क्योंकि मेरे हस्बैंड क्योंकि यहीं के बॉर्न है। अब वो यही कहते थे तुमने एक दफा ये रास्ता खोला ना, जब ये बड़े होंगे तुम इनको नहीं रोक सकोगी, तुम नहीं रोक सकोगी, क्या इनको इनके दोस्त कैसे मिलते हैं, अभी से सद्देबाब कर लो यहीं से रोक दो, बाकी अल्लाह रोकने वाला है। जी नादिया। वाक़या याद आया तो रिसेंटली मुझे सुनने में आया जी जी। बच्ची है और मतलब पेरेंट्स को टेलीफोन दे दिया, उनको पता ही नहीं कब हम्म। अपने बच्चे क्या कर रहे हैं। तो वो मतलब अपनी शर्ट वीडियो कॉल में शर्ट ऊपर करके ना थोड़ा दिखा रही, पूरी तो नहीं दिखा हम्म। रही थी। और जो सामने वाला था उसने उसको स्क्रीनशॉट लिया। जाहिर है कि देखने वाले कोई बात नहीं, बात करने की नीयत कैसी है। नीयत कैसे। और मैं सोच रही थी कि उस बच्ची को इस चीज का पता ही नहीं चला कि वो समझ रही शायद वो मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन अगर वो मोहब्बत, तो ये वही वाली बात है कि जिसको आपने पहले explain किया, तो मैं वो क्योंकि मुझे भी देखने में मुझे भी मिली ना, मैंने भी देखा। मैं सोच रही थी कि जरा सी मिस्टेक की वजह से सब उसकी आने वाली जिंदगी, किस उसकी कदर भलाई जिंदगी, और मतलब अंदाजा ही नहीं है कि हम सारी कहाँ तक ये बातें तो जाएगी, मीडिया अब पे चले नजर गए। वाली पीछे करें। तो मैं ये सोचती हूँ इसमें तो नजर ही नजर है नजर सारी। ही नजर है। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इसमें तो सिर्फ नजर ही नजर है। और मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ जो लोग इतने अल्लाह ताला मुझे माफ करे लेकिन जो इतनी फॉरवर्डिंग करते हैं उनके पास टाइम कैसे होता है। यकीन करिए कोई भी ग्रुप है मैं सच बता रही हूँ, इल्ला माशाल्लाह मैं कोई भी नहीं, मुझे पता है जिसका मैसेज देखना है, मुझे अगर मैं बैठ गई ना मुझे पता है 3-4 घंटे कहीं नहीं गए, उसके बाद आपने सिर्फ रोना है, उसके बाद सिर्फ रोना है क्योंकि आपके पास 10 जिम्मेदारी हैं। तो बजाय के बाद में रो पहले ही हट जाओ उस चीज से। जी सिस्टर फरीदा इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। जी जी। हम्म। भाई हाँ, मुंह बोले भाई बन जाते हैं। जी मगर जी जी जी। हम्म। हम्म। सुभान अल्लाह। आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कोई भी आपको हम्म। सुभान अल्लाह इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ता है कोई आपको जरा सा ये अंदाज होता है अंदर आने का। ठीक है ना। अब अक्सर जैसे एक दफा मुझे याद है मैं वॉक कर रही थी, मेरा बेटा जरा आगे था मैं पीछे गई,
एक मतलब कोई मुसलमान ही गुजरा, उसने मुझे सलाम किया, मैंने जवाब दिया, लेकिन इतनी आहिस्ते से जवाब दिया तो उसको एहसास नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं है कि मैं उसको जोर से जवाब दूं। जैसे आप गुजर रहे हैं, मुझे कहीं जाना था, मेरा बेटा जरा सा आ गया था, मैं थोड़ा सा पीछे थी, तो मेरे कहने का मकसद है कि मैं जरा सा जोर से बोलती, यहाँ तो अंदाज ही है कि हाउ आर यू सिस्टर, और फिर वो जो शुरू होती है सिलसिला, आपको पता है कि किस तरह इंसान जाता है, तो आप वहीं पे स्टॉप करें। आपको पता है आपने सलाम का जवाब दिया, आपको अल्लाह को जवाब देना, आप दे चुके, आपको पता है कितने कितने हैं, आपको कैसे स्टॉप करना है किसी भी जगह पे, क्योंकि आप जहाँ रह रहे हैं, और अब तो बैक इंशाल्लाह आगे देखेंगे जो आगे असबाब है उसमें इंशाल्लाह जी सबसे जैसे आपने बताया ना कि सबके हाथ में हिसाब, जी ये तो इतना आम है। कायदा वो नहीं देखते हैं। अभी मैं उम्रा करके आई हूँ ना, हम्म तो वो हम जो बेशक बराबर है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, तो हम तो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हो दिया। हमने अपनी बात ऐसे मैं आपको बचा के हम्म कि नहीं मैं मतलब कुछ नहीं, आप सर पे हाथ रखते हैं, आप कौन हैं जी, आप कजन है जो भी हैं, चाहे जितना भी बचपन में खेला हो। मैं मुझे हाथ दे दे, मैं आपको मैंने कहा नहीं है मैं इसको कर दूंगी, मतलब अपना अभी ज्यादा ना जी अपने आप बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतना नॉर्म बन चुकी है बैक टू होम में ये चीजें, कि उसको कोई बुरा ही नहीं समझता। सेम देवर भाभी के रिश्ते को, जेठ भाभी के रिश्ते को सेम इसी तरह। जी सिस्टर बीना। जी जी बहुत घूरते हैं। जी पूरे घर तक पहुंचाते हैं, जब तक आप एंटर ना हो जाए। कमेंट्स पे होता है, हाँ कमेंट्स पे होता है। अल्लाह अल्लाह जी जी हाँ अल्लाह अकबर। और उसने तो करना शुरू कर दिया। वो बहुत ज्यादा मतलब पावर में था, पैसा ज्यादा था। ये सब छोटे भाई के लिए ये मना करती थी कि नहीं नहीं करूँ। सारे प्राइमा भी मियाँ से था, लेकिन उस भाई की इतनी पावर थी घर में कि वो सोचते थे कि सबसे बड़ा हमारा भाई है, हमारा सबसे अच्छा है, सुभान अल्लाह। और वो देखें उसको हर वक्त करता है। तो वो नहीं मानी, तो वो अपने घर जाके बैठी 6 महीने तक बैठी, मैं नहीं जाऊंगी, वो हमेशा गलत हरकत कर रहा है, कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं। उस घर में 2 भाई और टोटल 3 भाई, सुभान दादी अल्लाह। बहन देवर जी और जी माँ। जी जी और फिर वो मना के ले आया, तो एक दिन मियाँ ने देख लिया, वो भी अगेंस्ट हो गया, और उसके बाद ये किया कि उसको सबको उसके अगेंस्ट कर दिया, छोटे भाई और भाभी। अल्लाह तो इनका खाना पीना अलग हो गया, माँ बहन दोनों भाई अलग। फिर एक दिन इतना झगड़ा हुआ कि उसके 3 बेटों को और बेटी को मतलब बीवी को कमरे में बंद किया, और भाई को ऐसा मारा कि वाइपर के नंगे वो कोई मतलब मरने वाला होता है, और माँ ने भी मारा, और बहन ने भी मारा, और भाई ने भी मारा, हाँ इतना मारा कि उसका ब्रेन जो वो बाहर निकला। माँ को पहुंची और हॉस्पिटल बुलाया, कोई नहीं आया मर, और आखिर में मतलब उसकी डेथ हो गई हॉस्पिटल में। और मेरे बॉस थे, वो लोगों ने छुट्टी का साथ दिया, और मैंने कहा हम इसको खाने में नहीं, कोई आदमी पैसा रहता बहुत खिला रहा था। तो इसका मतलब सिर्फ कि इतना वो मुकदमा भी जीत गया, लेकिन मुकदमा जीतते जीतते एक भाई को पैरालाइज हो गया, और वो हॉस्पिटल पहुंच गया, और वो बड़ा भाई कहता था तुम ठीक हो जाओगे, कोई मसला नहीं होगा, मैं पैसा लगा दूंगा कर। और उसकी डेथ हुई जिस दिन, उस दिन रात को जब वो घर आया, तो उसकी हार्ट फेल से डेथ। 1 साल के अंदर अंदर तीनों भाई का बनना। ये देखिए और हम ये ऐसे नहीं ये परवेज उसकी बर्सी नहीं आई, हमें खौफ आया अंदर से कि ये सामने नजर आ रहा है। कैसे तो इंसान एक तो लड़की को बहुत लगाया, बहुत कितना सफर किया उसने। फिर बहुत और बाद में शोहर भी चला गया, सब कुछ, कैसी बच्ची। इसलिए तो कहा जाता है कि हम लोग तो भाभी जी तो मूवी से इतने, ये जो ड्रामे है ना, ये तबाह, जो मजाक चलता है, चीजें चलती हैं, इसने पूरी हमारी नस्लों को तबाह किया हुआ है, और इस रिश्ते को कुछ समझते ही नहीं कि जबकि ये मौत है।
देख लीजिए मौत का कितनी प्रैक्टिकल इन्होंने बताया है, और ये हुआ, ये देख चुके हैं आप, देखिए। और हम पढ़ते हैं लेकिन हम फिर भी जैसे कहा जाते हैं तो हंसी मजाक चलता है। अल्लाह ताला माफ कर दे। मैं सोचती हूँ कि क्यों, इवन अल्लाह का एहसान है, अल्लाह बारक अल्लाह, अल्लाह हिम्मत देता है। मैं तो सिर्फ सलाम, इवन अपने जेठ को भी सलाम करके आप कैसे हैं, ठीक है, दूसरे कमरे में औरतों के साथ बैठ गई। क्या जरूरत है इतनी हंसी मजाक की, जरूरत है ठाटे मारने की, क्या मिलेगा? उसके बाद देखिए यही होता है, जिसकी पावर होती है ना, वो उल्टा इल्जाम भी लगाएगा और इस तरह से जिससे कहा जाए सीन क्रिएट करेगा। जी सिस्टर आशी, सेम 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 सेम, बिल्कुल सेम। बहुत आम है, बहनों बहनों तो मजाक चलता है शादी के दिन से ले। शा- शादी करवा ली है तो वो तो भाभी वही, वो माँ सही कही, माँ समान। इंडियन ड्रामों से उन चीजों से इतने मुतासर है कि हम उसको उसी तरह लेते हैं। सिस्टर फरीदा। हम्म 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 हम्म, जी और मेरा छोटा बेटा जी वो अंदर जी, अल्लाह हाफिज। हाँ बिल्कुल फितने, लेकिन आपने ये किया है। हाँ जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर एक घर में ज्यादा है, जैसे एक से ज्यादा बेटे हैं, तो ऑफ कोर्स आप फिर उस वक्त आपके लिए बहुत मुश्किल है साथ रहना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी। हम्म। लेकिन देखिए ये चीज उसको महसूस होगी ना जिसको पता आगे कितने फितने हैं। जो इल्म से आ रही है वो कहेगा सो व्हाट, अगर देवर अपने कमरे में भाभी अपने कमरे में, नहीं आपको नहीं पता चलता बात। लेकिन ये चीज लोगों के लिए कोई बात ही नहीं है। जैसे कहा जाए हमारे लिए बड़ी बात है ना कि जो हम हादसा देख रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए आम सी बात है, नॉर्म सी बन गई है। बल्कि लोग हमें गलत कहते हैं कि ऐसा क्या है अगर देवर भाभी साथ रह रहे हैं हम लोग। जी सच मरियम। मेरे घर में ऐसा हुआ था, मेरी कजन थी, घर गई थी, तो वो उसकी जब शादी थोड़ा सा ज्यादा उम्र हो गई, शादी हुई तो उसके शौहर जैसे होता ना कुछ सरकारी में थे और वो उसको जल्दी के लिए जाना जी होता जाना होता था। एक देवर, तो ये बात में इनको समझ में आती है जब उसकी जो शादी हुई, मतलब बच्चे थे पहले से, हम्म। तो इन्होंने छोटे छोटे, बहुत भी छोटे नहीं थे, 10 12, हम्म तो बोले कि खैर देवर था, तो उनकी बच्ची यानी कि शौहर की बच्ची थी, 8 9 साल की, वो चचा हुआ था, जी जी तो उसकी दोस्त आती थी। इन्होंने देखा कि वो देवर बात था, मेरी आंखें बहुत बात है, मेरे घर में बड़ी थी, और वो मैंने कभी उनका दुपट्टा नहीं देखा घर के अंदर हम्म भी, हम्म और वो आके बात करे थी, मना करते थे, हम्म, मतलब क्या फिर, मतलब अपने अपना कमरे में रिजर्व अपने कर लिया, काम हाँ। करते। जी जी। लेकिन वो देखी तो बच्ची 9 10 साल की, पहले चचा के पास आ गई, बैठ के स्कूल में बैठा ले, तो उसकी 2 साल बैठा, उन्होंने देखा उसका मार्क्स सही नहीं जाता, और नीचे और देख लें। आखिर में मतलब अपनी जो मेरी बेटी थी ना, हम्म उसको मना किया नहीं जाए के पास ना, वो तो अभी नई नई शादी हुई, माँ बहन हम्म, सब उसके खिलाफ, सुभान वो अल्लाह। होता है एक अलग ही लेवल लगता है। लेवल। घर में भी मैंने देखा इस तरह, तो मुझे बड़ा अंदर से बहुत तकलीफ हम्म हुई। बहरहाल कई दफा ऐसा हुआ, देवर आके से बात करना चाहे, मजाक के से डांट दे, कभी कुछ कर दे, और बड़ी सख्ती भी आती, हम लोग बहुत उनके साथ करते थे, हम लोग को बहुत ही मतलब हम्म अच्छी ट्रेन करती थी, हमारे साथ भी रही थी, क्योंकि हमारे ताया की बेटी का ताया के पास मतलब अपन है, पास जी कुछ साल के लिए। तो हम लोग तो उसके परवरिश में थे, हम लोग को बहुत डांटती थी, बाहर के साथ भाइयों के साथ बात भी करना, तो सर पे दुपट्टा रखो, तो बहुत हम लोग हम्म बहुत ज्यादा। तो वो फिर कई महीने 5 6 महीने गुजर गए, तो फिर मैंने अपने शौहर से कहा कि हम रख सकते, मैं साथ नहीं रहूँ, अपने देवर को या तो बहुत दूर, मतलब भाई को बहुत दूर जाए दूसरे घर में, यहाँ में अलग, तो उसने कहा नहीं हम नहीं ऐसा। फिर कुछ दिन गुजरा, फिर वो चली आई, बोला मेरा मेरी इज्जत, सुभान अल्लाह। जब से वहाँ फिर लगा की बात की ना, देखिए ये फितने घर घर में, अब देखिए ना, अभी इतने से लोगों में 2 लोग स्टोरी बता रहे हैं, किस तरह की हर घर की कहानी है।
اللہ کرے ہمیں سمجھ آئے. جی سسٹر لاسٹ انشاءاللہ. وہ گئے تھے پاس تو اس کے بعد واپس آئے ایئرپورٹ سے تو ایئرپورٹ سے انہوں نے لیکن پوری طرح بات سے ایریا تھا پڑا پوری طرح کوئی طرح سے تو وہ اتنا پوری طرح رونا تھا کہ وہ ان سے پوچھتے ساری رات بیٹھ تھکا ہوا تھا میں کہ مجھے ملتا مجھے پوری طرح تو اس کو پوچھا کہ کیا کیوں ہو تو پھر اپنی اسٹوری بتائی کہ میں اس یورپ کے میں ایک بہت حالانکہ کھانسی بہت سخت ہوتی جی جی اور میں بڑے جی جو باقی میں نے جی جی میں نے یہ اسٹوری سنی ہے. جی بالکل آپ سے میں جی انشاءاللہ. جی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. جی یہ اس کے بعد بھی اسٹوری آتی ہے پھر ہوتے 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 پھر اس کا انتقال ہی ہو گیا. جی 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 بالکل بالکل میں جی جی بس ختم ہو گیا. جی جی تو کہنے کا مقصد ہے جو زنا ہے ایڈلٹری ہے انسان انشاءاللہ توبہ کے اندر میں اس بات کو انشاءاللہ مینشن کر دوں گی. میں نے کچھ بھی انشاءاللہ اس میں یہ والی آیت کے علاوہ الا من تاب انشاءاللہ زنا کے بعد آپ آیت پڑھیں گے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ستے باب ہے زنا کے جو ذرائع ہیں ان سے مجھے جیسے کاجا بچا کے رکھے. اس میں آج آپ نے دو چیزیں دیکھی. تنہائی میں کسی بھی غیر محرم کے ساتھ آپ نے کبھی نہیں ہونا اور دوسرا انشاءاللہ کیا ہے کہ نگاہوں کو نیچے کرنا ہے. آج آپ کا ہوم ورک یہی ہے اپنی نگاہوں کو چیک کیجیے کیونکہ ہم سب باہر نکلتے ہیں مسلسل نکلتے ہیں. جی یہ ابھی آئے گا. اب اگلا اسٹیپ پلٹیں گے. پیار جی اللہ اللہ ایسی ہے کہ جی جی ریسٹرکشن آتا ہے بہریئر آ جاتا ہے اور اس نے ماسک نے تو اور آسان کر دیا. کچھ نہیں تو ماسک ہی ڈال لیں اگر انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیتے انشاءاللہ. تو آج آپ نے نظروں کو دیکھنا ہے اور انشاءاللہ آگے بات کرنی اور اپنے آپ کو کوشش کرنا ہے کہ باہر جائیں تو احتیاط کے ساتھ. لیکن آپ لین دین بھی کسی کے ساتھ کریں کسی شاپ پہ آپ اسمائل اتنا ایکسٹرا نہ پاس کریں کہ سامنے والا آپ کی آواز اگر بہت اچھی ہے تو پھر مسئلے بہت ہوتے ہیں. آپ کا انداز بہت خوبصورت ہے تو مسئلہ تو سامنے والا ہے اس کا دل کا نہیں پتا کہ وہ کس حد تک جسے کہا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی جسے کہا جائے نگاہوں کو جسے کہا جائے ویسی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طرح سے میں اور آپ اپنی نگاہوں کو اٹھا سکتے ہیں جھکا سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फ़ीक। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल अहया मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आख़िरह। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सिस्टर्स, आप लोग जो है कितने लोगों को लेकर आएंगे? मंडे हमारे 10 अप्रैल तक पे तकमील है, तो हमें एक आइडिया हो जाए ताकि हम अपने बॉक्सेस का इंतजाम कर सकें। आई नो कि एक रफली होता है, लेकिन अगर जितने लोग अगर लेकर आएंगे अंदाजा, जैसे अभी आप लोग मेरे ख्याल से 30 के करीब या 25-30 के करीब लोग हैं, तो कहने का मकसद है कि कितने लोग आएंगे, क्योंकि मंडे है और मंडे तक मिले तो हम एक तरह से बॉक्सेस का एहतमाम कर सकें इंशाल्लाह। तो प्लीज आप जरूर इंशाल्लाह बताइएगा कि, और आपके साथ लास्ट है और वो भी आयत भी बहुत खूबसूरत है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, ये आयत के साथ है, तो इंशाल्लाह इसी पे एंडिंग होगी, तो हम इसीलिए पढ़ रहे हैं। तो जरूर हमको बताइए, लोग अक्सर इस दुआ को समझना भी चाहते हैं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला आसान कर देंगे। तो प्लीज आप इस नेक्स्ट यानी फ्राइडे यानी थर्सडे तक नहीं, बल्कि आपको 2 दिन के अंदर कंफर्म करना है, क्योंकि हमें किसी को भी ऑर्डर देना है तो लाइक हमें थर्सडे तक तो देना होगा ना। ठीक है, तो आप थर्सडे तक कंफर्म कर लीजिए। आज मंडे है ना, थर्सडे या वेडनेसडे तक इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनविटेशन का प्लान इंशाल्लाह देखते हैं, नादिया कुछ आप बना सकते हैं या नहीं, पूछना पड़ेगा।